people are actively wanting to know. A quick thumbs up. I can just see 1, 2, 3, and the list goes on. Thank you so much for actively responding to me. Now I would like to ask you, what are the problems that you are facing, for which reason you have joined Ashtang Chikitsa? Anybody from the participants? I can see Mahalakshmi ma'am already with her fingers chatting away and writing in the chat. And there are some shoulder issues, there is some back pain, 8 parts body, okay. Diabetes and pain in legs. तो अनगिनत प्रॉब्लम्स आज हम फेस कर रहे हैं, राइट? एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो बहुत जोरों शोरों से बढ़े जा रहा है, एंड इवन यंगस्टर्स आर अफेक्टेड बाय इट. So don't you think we should take things in our command instead of just resorting to allopathic medicines, which not only gives a big hunch in the pocket and also leaves us with n number of side effects? So how many of us want to know what Ashtang Chikitsa is all about? If I have your permission, I would like to share the screen. Can I get a thumbs up? Thank you so much, participants, lovely participants. And all of them have practically switched on your video. Thank you for that as well. So just give me 2 minutes before I share the screen. Is the screen visible to everybody? Please give me a thumbs up once again. Yes. So Ashtang Chikitsa online therapy for neuromusculoskeletal problems. कुछ लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स लिख डाले जो आइदर न्यूरो कैटेगरी में आता है या मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स, राइट? तो अभी देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम इन प्रॉब्लम्स के बारे में. So namaskar, I welcome you all to the Ashtang Chikitsa webinar. I'm sure many people were awaiting this webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing your musculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from, but have not yet been lucky enough to find any permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. So Ashtang Chikitsa can also be used as a preventive method so that your internal organs are functioning at their optimum levels. So now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhu ji, a rare Kumbhak Yog. सब लोगों ने कभी ना कभी कुंभक का नाम सुना होगा अगर आप लोग योगा से जुड़े हुए हैं. अभी हम लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं कुंभक in a therapeutic way, which is in itself a very, very unique therapy where we are trying to reverse neuromuscular health issues through kumbhak. So Swami Raj Vibhu ji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has taken people out of chronic diseases like thyroid, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtang Chikitsa to address the structural issues of a human being. तो हम क्या बोलना चाहते हैं जब हम बोल रहे हैं structural issues? So when we say structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way, that's our purpose at Avisa Healing and Fitness. A profound way of addressing the aspects of the human body. Now let's come to the fact that who is this webinar for? Surprising question, right?
But no, it's true. ये webinar उन लोगों के लिए है who are tired of temporary treatment and are looking for some natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems without any external intervention. Reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtanga Chikitsa. Freedom from pain and medicine. Who does not want freedom from pain and medicine, right? So Swamiji will be talking about the Ashta Sharir. Now what are the Ashta Sharir? Shrishti Sharir, Garbha Sharir, Dosha Sharir, Marma Sharir, Pramana Sharir, Sankhya Sharir, Prakriti and the Vikriti Sharir. तो जब हम न्यूरोमस्कुलर हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करते हैं, so the main importance is given to the Prakriti and the Vikriti Sharir. Of course, the rest are also important, but Prakriti is the regenerative factor of the body, and Vikriti is the exact opposite, that is the degeneration factor of the body. So Ashtanga Chikitsa can heal. Of course, the list goes on and on because every week we get new participants and new diseases coming up. But these are one of the commonmost diseases that we are seeing in our participants. Knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine-related issues, slip disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder or drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, or the nerve issue. Of course, those were the common problems. अब आते हैं और गहरे problems पे जो आज लोग face कर रहे हैं, यानी कि a couple of autoimmune disorders which people are facing: muscular dystrophy, multiple sclerosis, TMJ disorder, varicose veins, psoriatic arthritis, Ehlers-Danlos syndrome. Even if while pronouncing these words, it's like, oh my God. Spinal stenosis, myasthenia gravis, Bell's palsy, cervical spondylosis, carpal tunnel syndrome, ataxia, Guillain-Barré syndrome, AVN, Alzheimer's disease, dementia. Another very, very common problem being seen today, glaucoma, vertigo. So let's hear from Swami Raj Vibhu ji. उन्हें हमें क्या बताना है कि किस तरह से हम अपने करंट प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं. So सब लोग अपने वर्चुअल सीट्स पे बैठ जाएं so that there is no interruption and you can exactly understand आप किस तरह से अपने present situation से बाहर निकल सकते हैं. Thank you so much for listening to me patiently. I would just tell you how we are going to proceed in the webinar. Firstly, we are going to share the video of Swami Raj Vibhu ji. उसके बाद हम लोग किसी को लाइव बुलाएंगे जो हमारे साथ शेयर करेंगे अपने अष्टांग चिकित्सा जर्नी के बारे में. Of course, the program details will be shared thereafter. Last but not the least, we are going to have Swami Raj Vibhu ji, who is the creator of Ashtanga Chikitsa, the program designed by him. He himself will be coming live to answer your health issues and how you can come out of your problems. Of course, we will try to take as many questions as possible. So, फटाफट लिख डालिए आपके प्रॉब्लम्स जो आपको परेशान कर रहे हैं, along with your name and number. Thank you so much, and over to Anil ji to share the screen. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem.
आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, दे एक्चुअली क्रिएट एवरी मूवमेंट इन योर बॉडी। आपके शरीर में वही मूवमेंट क्रिएट करना है। सो आई विल टेक वन एग्जांपल and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे। So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg, है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी। और स्पोर्ट्स पर्सन who has somehow damaged one knee, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम। Does everybody has damaged their knees? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? No. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए। रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, डीजनरेशन इज हैपनिंग। दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी, लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है। द डॉक्टर विल स्टिल से देयर इज अ लोकलाइज्ड प्रॉब्लम एट द नी। वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, एंड ही वुड ट्राई टू सी द प्रॉब्लम देयर इटसेल्फ। वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा। बट डू यू नो व्हाई इन्फ्लेमेशन हैपन इन योर बॉडी? व्हाई इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, सूजन क्यों हो जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है। If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला। So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में? प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now Rachana ji said after menopause osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes, what does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? हार्मोन imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. हार्मोन imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है। Now if the osteoporosis is हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर। If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी एग्जाम्पल नहीं है। Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%.
So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtanga चिकित्सा. Now, in the last 50 years, पिछले 50 साल, 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtanga Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार, in yoga कलाचार, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take an example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility.
क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते हो। योर बॉडी डजंट वांट टू। अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है। यू डोंट टेक इन, यू ट्राई टू एक्सहेल मोर। इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक जाते हैं, व्हाट इज टायर्डनेस? थकना क्या हुआ? लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, इजंट इट? व्हाट डू यू डू? यू डू लॉन्ग एक्सहेलेशन. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर हॉलीडे के लिए आप हिल स्टेशन में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे. हमने क्या किया? वातावरण का खराब कर दिया. डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सहेल मोर? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. सो ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी. सो व्हाट आर यू डूइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू गेट टू, अ बैलेंस ऑफ प्रकृति and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do you do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. वो whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो, see a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold. It is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है? तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then, next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है,
So it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuromusculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. At muscles, at joints. आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना? वहां पे so disalignment. If you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. तीन basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती disaligned हो सकती है. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. आपके जांघें disaligned हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा है ना? आजकल diabetes बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें. जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यस और नो? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है? वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go.
Let's go to the third part, pramana. Now, one more thing in Samkhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण means density. इसका मतलब होता है डेंसिटी, गुरुत्व, भार, डेंसिटी. इसी को धातु भी कहते हैं. वी कॉल इट धातु. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन योर बॉडी, इजंट इट? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. लाइक बोन इज वेरी मच डेंस. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. योर मसल्स इज लेस डेंसर देन योर बोन. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, your fat tissue or adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. People who have denser bones and muscles, their weight is high even though they are lean. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, ये जितने भी ऑर्गन्स है ना, इनको काम करने के लिए देयर इज अ डेंसिटी रिक्वायर्ड. सो वी आर लूजिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ आवर ऑर्गन. हमारी ऑर्गन वीक हो रही है. व्हाट इज डायबिटीज? योर पैनक्रियाज इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, योर लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. व्हाट इज हाइपोथायराइड? योर थायराइड ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, है ना? इट हैज ऑल्सो रिलेशन विथ लिवर. व्हाट इज किडनी डिजीज? योर किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. ऑर्गन डैमेज आजकल ज्यादा है. यू विल सी मोर क्रॉनिक डिजीज आर देयर, है ना? ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज. सो हाउ डू यू करेक्ट योर ऑर्गन? सपोज देयर इज अ जॉइंट पेन ड्यू टू लिवर डिसफंक्शन. लिवर के कारण आपके शरीर में जॉइंट पेन है, इन्फ्लेमेशन. सो यू विल हैव टू करेक्ट द लिवर. आपको लिवर ठीक करना पड़ेगा. इज देयर अ मेडिसिन टू करेक्ट लिवर? नो, देयर इज नो मेडिसिन टू रिजुवेनेट योर ऑर्गन. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुवेनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते आप, बट सांस रोक के by holding the breath, where are you creating the trigger? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, कोई भार आप उठाते हैं, so how do you lift weight? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath.
you hold your breath and you when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles, दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong, your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is what how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally. Your heart rate will increase. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. You start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you, for youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की मूवमेंट होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ, आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement होगा, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना?
क्या हुआ? गैसेस रिलीज हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना मूवमेंट के नहीं होगा. ब्लड सर्कुलेशन कैन हैपन विदाउट मूवमेंट बिकॉज देर इज अ पंपिंग ऑर्गन. एक हार्ट है जो ब्लड सर्कुलेशन करवा रहा है, लिम्फ का कोई सर्कुलेशन नहीं करवा रहा. इट विल ओनली हैपन बाय मूवमेंट ऑफ द बॉडी. सो इफ यू मूव द बॉडी इन अ पर्टिकुलर वे, दीज टॉक्सिन्स दे गो आउट ऑफ द बॉडी. देर इज अ कॉन्स्टेंट रिजुवनेशन ऑफ सेल्स. इंटरनल एनवायरमेंट साफ बनेगा आपका, तभी देर विल बी प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्म, बेटर सेल्यूलर फॉर्मेशन. अगर वो एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेल्यूलर फॉर्मेशन कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. सो बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एनवायरमेंट, कैंसर हैपेंस बिकॉज ऑफ अ कैंसरस एनवायरमेंट. और उसके लिए इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, देन देयर शुड बी कांस्टेंट रिजुवनेशन ऑफ मर्म. तो इसमें हम मर्म, अष्टांग चिकित्सा में देयर इज अ पार्ट इन अष्टांग चिकित्सा, देयर इज अ पार्ट कॉल्ड एज अंगन्यास एंड मर्म विन्यास, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. तो function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी: material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of this word called vata, pitta, kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, kapha, pitta, vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. हाउ डू यू कंट्रोल दिस मूवमेंट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर मैनर. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. यस और नो? यू कंट्रोल योर मूवमेंट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ यू कैन नॉट कंट्रोल योर मूवमेंट. तो वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's really temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. कोई और चारा है नहीं. So dosha sharir ko, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about? Spondylitis and what else?
neuro problem. Now, something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. Huh? There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 64-65 year old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing Kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There was a marathon. There is a marathon runner. She's a lady, a lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing Kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started Kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता. So these are examples of people who have done Kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now burst, is now being bursted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics,
then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say, or what is being said in the world today, can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप मूव करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए, आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा feel होगा? How will you feel in your body and mind? You will feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान ही कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा force weak हो गया जिसकी वजह से आप problem में आ गए? That is what we diagnose in prana shakti diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis. And in the 9 weeks, you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं
There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as Anganyasa. The second one is called as Hatha Vinyasa. The third one is called as Kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you will not get a magic pill. कोई ये मैजिक दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important. Wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. Now I would like to invite Ramesh sir to talk about his journey of Ashtanga Chikitsa. Ramesh sir, we'll just put you on spotlight. Ramesh sir, am I audible? Yes. Okay, sir. Thank you so much for joining us today evening. Anilji, can you put him on spotlight, please? Yes, his video is not on, so I've asked him to switch on that. Okay. Ramesh sir, can you please switch on your video? Yes. Yes. Namaste. Thank you so much for joining us. So, sir, can you talk about your journey? What was your state before Ashtanga and how Ashtanga helped you? पहले मैं थोड़ा 1 मिनट में मेरा प्रॉब्लम की हिस्ट्री थी ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. मैं जनवरी 2019 में मेरे पर GBS का अटैक हुआ था. GBS, गुलियन-बारी सिंड्रोम. तो इसमें मेरी तबीयत बहुत अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था. मैं कार चलाकर घर पे आ रहा था. दूसरे दिन मेरी फ्लाइट की टिकट थी, सब कुछ क्लियर था. मगर चालू कार पे मेरा हार्ट ड्रॉप हो गया. फिर मैं घर पे आया, बात करी तो मैंने सोचा सो जाओ. सुबह जागा तो एक पग जुटा हो गया, सब पैरालाइज होने लगा. तो बाद में पैरालिसिस बढ़ता सारा बॉडी पैरालिसिस हो गया.
मुंह से काम नहीं कर सकता, नाक से सांस नहीं लेता, सिर्फ आंख और कान दोनों ही मेरा चलता था। बाद में 1.5-2 साल ट्रीटमेंट चली और डॉक्टर ने बोला कि आपकी रिकवरी जो 1.5-2 साल ही इसमें मिल सकती है, बाकी जो भी डिसेबिलिटी है वो आपको एक्सेप्ट करके जी लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं। फिर मैंने जून 2022 आफ्टर 3.5 ईयर कि जब ये मेडिकल साइंस की लिमिट पूरी हो गई थी कि ये रिकवरी नहीं आ सकती, तब मैंने फेसबुक में स्वामी जी का वीडियो देखा। तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करूं विथ जीरो थॉट था, जीरो वो था कि मैं होगा या नहीं मालूम नहीं था, मगर कुछ भी नो तो भी सही, मगर मैं ट्राई करूं। तो मैंने ये कोर्स किया और बाद में आज मुझे फूड ड्रॉप में जो 30% ही रिकवरी थी वो 70% हो गई है। और बैलेंस का प्रॉब्लम मुझे बहुत था, मैं चल नहीं सकता था, तो अब मैं फोन लेकर वॉकिंग करता हूँ कुछ प्रॉब्लम के बिना। और फूड ड्रॉप में मैं ये वो पहन के ही चल सकता था, अब कोई डिवाइस वगैरह सब कुछ बंद हो गया, मैं नॉर्मल चलता हूँ। थोड़ा फूड ड्रॉप है मगर ये मैं कुंभक करता हूँ डेली। और मेन मुझे फायदा ये हुआ साथ में कि मेरा डाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत था, मैं थोड़ा बहुत लेता था तब भी डाइजेशन नहीं होता था, मगर ये कुंभक के बाद डाइजेशन की दवा बंद हो गई, कॉन्स्टिपेशन की दवा बंद हो गई और मैं अब एकदम क्लियर हूँ मैं। और मेरा फिजियोथेरेपिस्ट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि आपने मेडिकल साइंस को गलत ठहराया। तो ये सब के लिए मैं स्वामी जी और सब टीम का मैं खूब खूब आभार मानता हूँ। सबको गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच रमेश जी, आपने इतना अच्छा आज हमें बताया कि किस तरह से हम लोग मेडिसिन फ्री वर्ल्ड में जी सकते हैं and we can have a very good life. Now I would like to invite Padmavati ma'am to share her journey of Ashtanga Chikitsa. Padmavati ma'am, can you hear me please? Padmavati ma'am? There are two, Padma Janardhan and Padmaja. Okay, Leena Parvati ma'am, sorry. इनो बोले Leena Parvati ma'am. Leena Parvati ma'am. પેલા માણસ છે આમાં કઈ બીજી કઈ લપમાં. Namaste. Thank you so much ma'am for joining in. Yeah. And I'm so sorry I pronounced your name wrong. It's okay. It's okay. I live in Port Blair, Andamans. I'm a very what do you call practitioner of yoga. I used to do yoga regularly for at least 1 hour, 1.5 hours in the morning. थोड़ा stressful situation family में आया, उसके वजह से I started having neuromuscular problems. नस खींचना, muscle pull होना. I had to always go for massage to get it corrected. I was wondering इतना योगा करने के बाद क्यों ये problem आ रहा है? After 60 it started. तो एक friend ने ये suggest किया that Avisa healing Ashtanga Shircha, and I started doing. Only for 1 month. I joined in December and I attended all the classes. I'm finding great relief and I've sort of become addicted to it. If I early in the morning, I have to get up and do it, and then only my day starts. There is so much of benefit. I have been cured of my knee pain, just 3-4 weeks of doing. And even I've been having this obesity problem for quite some time. I find that my body is light and I'm able to have good balance while walking. And my digestion has improved. And lot of small things. I've become very conscious is of Swamiji's repeatedly telling, have a smile on your face, and the alignment of the body. I can literally feel
the alignment in my body, because I've suffered from this navel dislocation for quite some time, for 15 years. But then I got it corrected from a person. But now I can understand how the body is getting aligned. There's the geometry of your body and with the geometry of the universe. It's so, the feel is so good when you really feel that alignment. Thanks to all the volunteers and Swamiji for this program. I wish that many would benefit from this practice. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for joining us today evening. And now I would request Anilji to please share the program details. Yes, give me a few seconds. Rachna ji, are you able to see the screen? Yes. Okay. So let's get to know the details of the program, which a lot of you must be waiting for. First of all, this is a guided program which is conducted online on the Zoom app by trained Kumbhak mentors. ये कुंभक mentors द्वारा प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है और एक ये गाइडेड प्रोग्राम है अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन. दिस हैज टू बी डन. Program modules. There are 3 modules in the program. Module 1, 2, and 3, or you can call them Vata, Pitta, and Kapha module. Duration of each module is 21 days. हर एक मॉड्यूल का 21 दिन यानी कि 3 हफ्ते का एक मॉड्यूल है. So total duration of the program is 63 days or 9 weeks. You see 9 plus 1 here. Why 1 week extra? You'll get to understand in a short time. There'll be 2 live classes every week, out of which one will be the learning or the main class and one will be the mentoring or the practice class. We'll get to know what's the difference between the main and the mentoring or the practice class shortly. What are the next steps? You pay the program fee and there's a special webinar pricing for the people who are attending it live. After that, you fill the participant onboarding form and then you start your classes starting with module 1, then module 2 and 3. All modules have to be completed. Again, module 1 has 6 classes, out of which 3 are learning and 3 mentoring or practice classes. Same is for module 2 and module 3. So total 18 classes. Then you see 1 customization class also. What is this customization? You'll get to understand shortly. So total engagement instead of 9 weeks, it becomes 10 weeks. Because in the 10th week, that customization happens. Batch 120th will start on 6th March, which is a Monday at 7 p.m. For the mentor classes or the practice classes, like I said that on the 3rd day, like for Monday is the main class, Thursday would be the practice class for module 1. For module 2, one day it will be shifted. Like instead of the main class being on Monday, it will be on Tuesday and Fridays will be the practice class. We'll share the details in WhatsApp group and here also on chat. What is the class experience like? By now, you must have known that these are live sessions which will be conducted on the Zoom app. Zoom app के ऊपर ये live sessions या live classes conduct की जाएंगी. Mentors watch all the participants and that's why it's compulsory to keep your cameras on during the class because we know how to conduct this therapy online. A lot of people initially they have a doubt that whether they'll be able to learn it. So rest assured, don't think about it because that's our expertise to make you do the kriyas online. You'll be at your home, we'll be at our own home, and that's how these classes will be conducted. Then there'll be written instructions in English and Hindi as well. Session recordings will be there.
all the classes are recorded and made available to all the participants through a course dashboard. We'll talk about it in detail. Then there'll be extra things. There'll be mental practices that you'll be given, then unique diet perspective. Mind you, this is not a diet plan. Many people ask us if there are any dietary restrictions. There are none. But you'll get a video from Swamiji wherein he talks about how to use food so that it does not harm the body. And apart from that, there'll be simple detox processes, which all of you will be getting. And a lot of knowledge is shared by Swamiji with all the participants. Now I've written yearly expenses here on that we could already be doing on the disease that we are into. And why this is being shared is so that you know that we are spending a lot of money on the disease just to manage it, not cure it, or not get a permanent solution or a long-term solution. I've written doctor fee here. These are yearly figures. 6,000 to 12,000 every year you could be spending on doctor's fee. Then if you are into physiotherapy, another 12,000 to 30,000, depending on the city and the kind of physiotherapist that you have. And medicines could be costing another 15,000 to 30,000. So total, if we do 33,000 to 72,000 per year, you could already be spending to manage your disease. The reason for this is because when I announce the price, we normally like to compare things, be it a therapy or a product, anything in life. We make comparisons, right? So just to compare with what the fee would be for Ashtanga Chikitsa, that's the reason for it. And we all know about side effects of allopathic treatment, so we won't talk about that much here. And before I share the program details also, it's also important to know who this program is not for, so that it becomes clear who this program is for. So let's see. This program is not for people who are looking for a magic pill. Swamiji talks about it all the time because since childhood, we've been so used to popping a pill, taking a medicine. जैसे आपके घर में बच्चे होते हैं या आप भी जब बच्चे थे, खांसी हुआ, जुकाम हुआ, तुरंत एक सिरप ले लिया, तुरंत एक गोली ले ली, and that's how it's got into our psyche, into our habit, right? So जैसे हम I talk to a lot of people before they enroll, वो कहते हैं कि एक कुछ खाने को कुछ दवाई दे दीजिए, इतना हमसे नहीं होगा, right? So just to make it clear that this is not a magic pill and this won't get you results the next day. That has to be understood because the problem that you are into did not come overnight, so it won't go overnight. That has to be understood. Then this is not for those who are not ready to work on their body. Because this will take about 80 to 90 minutes every day to practice all your kriyas. So it's important that this thing is going to take time because it's a holistic way. It's a long-term solution that you'll be working towards and on your body. This will be the time when you're taking your health in your own hands and you're practicing your kriyas and strengthening your internal organ. So इसीलिए इसको 80 से 90 minutes initially. As you keep on practicing, it will take you lesser time. Everything that we start doing for the first time is difficult, is sometimes confusing, and takes more time. As you keep practicing, it will become easy. Like we say that before anything is easy, it is difficult. So that's the thing. You have to invest at least this much initially. So just wanted to make it clear so that later on, you know, for people, we are talking about who this program is not for. So, and this is not for those who are impatient. ये point जरूरी है because when we are in pain, when we are in difficulty, patience हमारा थोड़ा कम हो जाता है. But still, just wanted to highlight this point. And this is not for those who are looking for a free treatment or just some tips. It's important to clarify this point because people, when we announce the fee, people tell us that you advertise that it's a free program. There's a miscommunication or misunderstanding because we advertise it's a free webinar. Because it's an introduction to Ashtanga Chikitsa. But they think that the program is free because, so just wanted to clarify this. So this is not a free treatment, it's a paid program because our mentors are there. It's a guided program, step-by-step instruction. I'll explain later on after some time. And if you're looking for tips, because a lot of people attend the webinar, most of the people are
just attending and those pick up some tips. But any kind of permanent solution is not possible through just some tips, because had it been the case, everyone would have sorted out their problems, because YouTube is full of thousands and thousands, maybe lakhs of videos, and everybody is an expert on YouTube telling something or the other, right? So anything which you do for a permanent or a long-term solution for a holistic way of treatment has to be done through a proper guided program under supervision of experts. So just wanted to clarify these points so that you do not ask later on and get confused. Now let's understand what you get in the program. This will really open your eyes, because the first point is Pran Shakti diagnosis for root cause determination. I'll again say this diagnosis in itself could be worth the whole fee of the program. Why? Because not many therapies in the market are able to find the root cause of the problem. They're just treating the symptoms and that's it. जड़ क्या है बीमारी की, ये प्राण शक्ति डायग्नोसिस से पता लगता है. ये होता क्या है? What is प्राण शक्ति diagnosis? I'll just tell you in brief. This is, first of all, this is an online diagnosis. Second is that this is a non-medical diagnosis. तो ये है क्या? You'll get a form in which you'll be asked to do some experiments on your breath and emotions and note those down in the form. Second thing that has to be done is you'll be writing about your problem, health issues in detail. And thirdly, you'll be uploading a selfie photograph, shoulder and above. But you don't have to wear any specs. अगर आप चश्मा लगाते हैं, चश्मा नहीं पहनना होता है. And in case of ladies, no makeup also. So when these three things reach Swamiji, he is able to determine which force out of the 84 forces has become weak, due to which you have landed in your current health issues. You must be remembering that in the video, Swamiji talked about the 84 forces. So one or more than one force, which force has become weak, due to which you are facing your problems. So this is done through Pran Shakti diagnosis. Then weekly, one main class of 60 to 90 minutes. Why 60 to 90? 60 is the actual class. Then we take up questions from the participants and clear their doubts. So that's why it may take another 20 to 30 minutes. Practice class, again, same 60 to 90 minutes. Then online course access for 6 months. What is this online course access? Like I told you that the classes are recorded and made available, and they are uploaded to the course dashboard. You'll get a login ID and password and an app also, which you'll be downloading to your
Hello, am I audible? Yes, you're audible. Anil ji, should I share the screen? Yes. No, am I audible? Yes, yes. No, I'll share the screen because was I audible before? No, that is, you were not audible for some time. Okay. I'll share the screen, no problem. Okay. Can you see the screen now? Yes, yes. Okay. So I was talking about the private WhatsApp group that you'll be added to, or it's a class WhatsApp group where you can ask your doubts, your questions 6 days a week. Like 2 days of the week, you'll be live with us and you can ask your doubts, questions that time. But the remaining 5 days, when you're practicing alone, and if you have any doubt that time, so this is the place where you'll be asking your doubts and questions. Our mentors are there in the group. They'll be guiding you and answering all your questions and giving you step-by-step instructions. We know that it's a online program, so there'll be challenges. So we've tried to take care of all places where things can go wrong. So the maximum support is available, and I'll talk about it more. Individual participant progress tracking or feedback. We track everyone's progress on a weekly basis so that you know and we know that if you are making progress or not. That is very important for any kind of a therapy, any kind of a treatment. Then therapy customization for each participant in the 10th week. This is very important. Many people ask us that if different people are suffering from different ailments, then why same? Why same therapy? Because this takes care of all types of neuro, musculoskeletal problems. Problems related to the nerves, muscles, or bones, ligaments, tendons, metabolism issues also, plus liver issues also. So therapy customization, what is therapy customization? Like I talked, if you remember the first point, I talked about Pran Shakti diagnosis. Based on this Pran Shakti diagnosis, the Kriyas or the therapy are fine-tuned and customized for each participant separately. Because for example, let's say 10 people have knee pain, but the root cause would be different in all of them. That's very important. Like if you remember, Swamiji talked about not thinking of a problem as a local problem. Uski jad kahan hai, wo pata lagate hain diagnosis se, and then based on that, the therapy will be customized for each participant. Then extended support for 30 days after the program is over. After the 10 weeks are over, you still get 30 more days. Why these 30 more days are given? Because many a times, some people fall very ill and they are not able to attend all the classes. So just for their benefit, there's the 30 days extra that you get, and which is not chargeable at all. This everything is inclusive in the program fee only. I've listed all the points which I just talked about, and then the fee now, which most of you must be waiting for. Ki fee kya hai? Dekhte hain. Just 14,500 for the complete 10 points I told you: the therapy customization, diagnosis, the classes, the support, everything. But like I said in the beginning, there is a special webinar pricing for people who are here. And what is that? Just 6,500 for the complete therapy of 9 weeks, the 18 classes plus 1 customization class, 30 days of extended support, all inclusive. You don't have to pay anything extra than this. Okay. How to enroll? You pay the program fee. That's step 1. Step 2, you post the payment receipt in the WhatsApp group. Our team members are there in the WhatsApp group. They'll confirm it in the group, and then they'll share the participant onboarding form link on your personal chat. And after that, you'll join the class WhatsApp group, about which I just talked about, where you'll get support on a daily basis. And then step 5 is to start attending classes. Simple 5-step process, right? These are payment methods we'll share in the chat as well as in WhatsApp group also. And I'd just like to stop here. This is the last slide of my presentation. I'd just like to talk about the team that will be supporting you. We don't call it actually. Our participants call our team a super team.
because they experience, and when you also experience the kind of support that you'll get, maybe you'll also label us with a super team. We have Rachna Shrimal Bothra, who's the program director. Shalini Bhagwat, she is the class manager. Ashwani Kumar is the IT manager. Then we have a lot of mentors. Ranjana Swain, R.D. Gupta ji, Soni Chabria, Arun Narayana, Nina Rai, Suruchi Goel, Arundhati Degaonkar, Meera ji, Sushma, Kishore. Why so many mentors? Because we understand this is an online program. So every participant has to be supported. A lot of programs are not successful just because not everybody gets the kind of support. People feel lost and they don't know who to ask. So enough support is available in forms of mentors. Then we have Neha Upadhyay. She is the enrollment in charge. She will be the person who will be talking about the fee, the links of the payment and everything before you enroll. Anil Chauhan, that's me. I'll be answering most of your questions in the WhatsApp group. Like just after my presentation, this presentation, Swamiji will be live to answer all your questions. But due to shortage of time, we may not be able to take up all the questions. But if your question is not taken, please do not worry about it, as you can type those questions in the WhatsApp group and I'll answer each and every question. If you are not able to answer that, we'll consult Swamiji and get the answer for your question. So don't worry about that. And don't feel bad also. Many people they feel bad and they just leave the group. So please don't leave the group. You'll get the answer, because we get a lot of questions just after the webinar. So if we are not able to take up today, I'll be awake till 11 p.m. So don't worry about it. So next day we'll take it up. And then we have Himanshu Reddy. He's the technical person and he takes care of all the recordings and to upload and then help if your login ID is not working, if your app is not working, he'll be the person who will be helping you out. Then we have Anita ji. She's the personal support in charge. You'll have access to her directly. Her number is shared with all the participants. In case there's something which you want to talk about personally, you can do that. So the support that I talked about, the WhatsApp group is there in the live classes. The question answer session is there. Then you have Anita ji who you can talk directly. So that's why we call it a super team, or our participants call it a super team. And with this, I come to the end of my presentation. Thank you, everyone. Namaskar. Thank you so much for listening to Anilji patiently. Now I would like to just let me check if Swamiji has joined in. Yeah, Yes, Swamiji has joined in. Namaste, Swamiji. Namaskar. Good evening. So we will be taking up the questions one by one in the chat. And then maybe if time permits, we will take up some hand raises. Indira Verma talks about, I'm not able to sit, walk, not even sleep on my back. Little comfort only on one side sleep. So can I do Kumbhak? So you need to realize that even if you have to lie down, you need to have the strength of lying down. आपको आराम करने की भी शक्ति चाहिए, बिना उसके आराम भी नहीं होता. ओके, वेरी सिंपलिस्टिकली अगर हम देखें, बहुत आसानी से अगर देखें तो मसल जहां पे नहीं होंगे, skeletal muscles actually protect the interconnection of your nerves and skeletal system. हड्डियां और आपकी नसें जो है ना, उनके बीच में skeletal muscles, जो muscles हैं जो हड्डियों के साथ में जुड़े हुए हैं, and adipose tissue. एडिपोस टिश्यू यानी कि फैट के टिश्यू, ये दोनों कुशन का काम करते हैं. द मसल एक्चुअली टेल्स यू अबाउट व्हेन इट हैज बिकम टायर्ड, इसीलिए आप करवट बदलते हैं, है ना. उसका इंडिकेशन जैसे ही मिलेगा आप करवट बदलेंगे. तो सिंपल तरीके से बोले तो स्केलेटल मसल्स वहां पे अगर कम है और एडिपोज टिश्यूज कम है. एडिपोज टिश्यूज यानी फैट कम क्यों हो जाता है? बहुत लोग पतले हो जाते हैं, फैट कम हो जाता है. फैट कम क्यों हो जाता है? फैट का इस्तेमाल कब होता है? डू यू नो दिस? नाउ नॉट मच इज नोन अबाउट फैट. आप समझते हैं ना कितना हमारे शरीर के बारे में मालूम है? 1% से भी कम. हाउ मच वी नो अबाउट द बॉडी? लेस देन 1%.
So if we know less than 1, So there is some network issue from Swamiji's end. So all apologies for that. Swamiji will be logging in shortly. Please wait. Yeah, he's joined in. sorry, वो network drop, sometimes it happens. So जो मैं बात कर रहा था कि हम 1% भी नहीं जानते शरीर के बारे में. That is why whatever treatment we are doing, we are increasing the disease. हम उससे बीमारी बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर पा रहे. तो आसानी से आपको थोड़ा सा और बताते हैं, ठीक है. तो इसका मतलब एक चीज जिस पे हम वी केम टू दिस कंक्लूजन दैट आपका मसल का रीजनरेशन नहीं हो रहा और एडिपोज टिश्यू यानी जो वो कुशन होता है उसका डीजनरेशन हो रहा है, खत्म हो रहा है. तो जब भी रिस्क आता है आपके शरीर में, रिस्क को आपका शरीर झेलता कैसे? इतने समय तक ये प्रॉब्लम झेला कैसे आपके बॉडी ने? आपके एडिपोज टिश्यू को कॉर्टिसोल एंटी रिस्क हार्मोन में कन्वर्ट करता गया. तो इसीलिए जब बीमारी होती है तो एक टाइम तक वेट बढ़ता है, उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आपका बॉडी जो है उसको फैट को जला के रिस्क खत्म करेगा, कॉर्टिसोल बनाएगा. अच्छा, ये शरीर काम कैसे करता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा समझते हैं. सो रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, किसी चीज को आपका शरीर रिस्पॉन्ड करता है. आपका शरीर, आप अंदर क्या कर रहे हैं? शरीर के अंदर हार्ट बीट करवा रहे हैं, हार्ट फंक्शन, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, न्यूरो फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, कुछ भी नहीं कर रहा. दैट मीन्स द बॉडी नोज द मैकेनिज्म ऑफ हाउ टू कंडक्ट इट. वो कैसे करना है शरीर को मालूम है, ठीक है ना. तो ये रिस्पॉन्ड करेगा. गर्मी लगेगी तो पसीना निकालेगा, ठंडा कर ले. ठंड लगेगी तो गर्म करेगा. कार्बोहाइड्रेट डालोगे तो इंसुलिन रिलीज करेगा, ठीक है ना. प्रोटीन को बनाना है तो थायरोक्सिन रिलीज करेगा. इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा, डायबिटीज. थायरोक्सिन ठीक से नहीं काम कर रहा, थायराइड. आगे चल के हार्ट भी काम करना बंद कर देगा, उसकी स्ट्रेंथ भी खत्म, क्योंकि कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड. अब मुझे बताइए कि अगर इफ यू पुट फूड, द बॉडी विल रिस्पॉन्ड बाय रिलीजिंग हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, ऐसा निकालेगा ना आपका शरीर, गैस्ट्रिक जूसेस. अगर आप एक केमिकल डाल देते हो तो हाउ वुड योर बॉडी रिस्पॉन्ड? आपका शरीर बना, डिजाइन ही नहीं है किसी केमिकल को रिस्पॉन्ड करने. तो इसका रिस्पॉन्स मैकेनिज्म कंफ्यूज हो जाएगा ना. लिवर जो है ना आपका सेकंड ब्रेन है, उसको मालूम है आपका फूड क्या है. वो चेक करता है ये मेरा फूड है कि नहीं. केमिकल डाल दिया और चेक करेगा, कहेगा नहीं, दिस इज नॉट माई फूड, दिस इज रिस्क, दिस इज पॉइजन, दिस इज अनवांटेड थिंग, ठीक है ना. तो वो उसको सफाई करने लगे. मगर आप लगातार डालते जाओ उसमें ऐसी चीजें विच इज अनवांटेड, तो आपका शरीर कंफ्यूज हो जाएगा, राइट. तो उसका मेटाबॉलिज्म खराब होता है. दो मेटाबॉलिक डिजीज कौन से हैं? डायबिटीज, थायराइड. वैसे कैंसर भी मेटाबॉलिक डिजीज है, मगर जो आमतौर पे हम देख रहे हैं ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं. और मेटाबॉलिक डिजीज क्या है?
न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, जिसके लिए आप वेबिनार में आए। ये मेटाबॉलिक डिजीज है। आपका मेटाबॉलिज्म यानी किसी चीज को एक से दूसरे में कन्वर्ट करने की क्षमता शरीर की खराब हो गई, रिस्पॉन्स खराब हो गया। इसको मालूम नहीं अब क्या, बचपन में जब पैदा हुए तो कितने सारे वैक्सीन इम्यूनाइजेशन करवाया गया था ना, सब केमिकल डाला। इतने छोटे बच्चे को, 2 किलो के बच्चे को हम इतना कुछ केमिकल डाल रहे हैं, इसका रिस्पॉन्स में। और आप याद कीजिए आपके जीवन में आपने कितना केमिकल खाया होगा, पूरे जिंदगी कितनी दवाई खाई है। अरे केमिकल केवल दवाई में नहीं होता, दैट इज प्योर केमिकल। दवाई तो प्योर केमिकल है आपका। उसके अलावा प्रोसेस फूड, पैकेट में जो भी कुछ खरीदते हो वो केमिकल। बॉडी पे लगाते हैं क्या, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपका शरीर सोखता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, केमिकल लगा रहे हो ना। हाँ, even your food has become genetically modified, processed, hybrid, inorganic केमिकल तो डाला जा रहा है। केमिकल वो जाएगा कहां, खेतों का केमिकल जाएगा कहां, आपके शरीर में तो जाएगा। सो कैन यू अवॉइड दिस? क्या आप उसको अवॉइड कर सकते हो? आज के टाइम पे तो नहीं कर सकते, आज के टाइम पे अवॉइड नहीं कर सकते। यानी कि आज के टाइम पे अगर आप एनवायरमेंट ठीक नहीं कर सकते, फूड ठीक नहीं कर सकते, केमिकल से बच नहीं सकते, तो बचाओगे कैसे अपने आप? द बॉडी इज रिकवरी मैकेनिज्म, उसको और स्ट्रांग करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। खाना खा के, भोजन खा के आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि दैट इज इटसेल्फ अ डिविएटेड थिंग। और दूसरी बात ये, फूड खा के क्या आप मैराथन दौड़ने लग जाते हो? ऐसा तो नहीं होता ना। शक्तिशाली हो जाते, ऐसा नहीं होता। फूड खाने में, उसको डाइजेस्ट करने में भी आपके शरीर की शक्ति लगती, और 6 लेवल पे लगती, 6 लेवल पे लगती। यानी कि आपके शरीर में देर आर 7 डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ टिश्यूज विच आर फॉर्म। शरीर में 7 अलग अलग तरीके के टिश्यू बनते हैं। इसको कैसे कहा गया? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 7 डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ टिश्यू, और 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म करता है आपका बॉडी, कन्वर्ट करता है उसको एक से दूसरे में। उसमें जान लगती है शरीर की, उसमें शरीर की एनर्जी लगती है। देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, 6 अलग अलग शक्तियां लगती है आपके। अब आजकल बच्चों को देखिए जरा, है ना, एक याद कीजिए अपने दादा दादी नाना नानी, और एक याद कीजिए अपने बच्चे, अपने को भी याद कीजिए, और एक अपने बच्चे। दे आर फिजिकली, हु वर फिजिकली स्ट्रांग? आपके दादा दादी नाना नानी, अपने आपके बच्चे, दोनों फिजिकली स्ट्रांग कौन है? ऑब्वियसली आपके दादा दादी नाना नानी, है ना। यानी सीधा सीधा कनेक्शन है क्या, कि फिजिकल स्ट्रेंथ, देह बल तो कम हो गया। दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, जिसे मैं कह रहा हूं, एक फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ये तो बढ़ाना पड़ेगा आपको, ये तो बढ़ाना पड़ेगा, देह बल तो बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चाल? कौन सी दवाई मेटाबॉलिज्म ठीक करती? कोई दवाई नहीं। वो खराब तो उसने किया। आप आज भी ढूंढ रहे हैं ना कि कोई दवाई मिल जाए जो मुझे ठीक कर दे। यानी और आज आप और तैयारी करें कि अपने को और खराब करें। जिस दवाई से आपकी हालत ऐसी हुई है, उसी से आप ठीक करना चाहते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं हो सकता। और हम तो इंडियंस हैं, हम तो बुद्धिमान प्रजाति है ना, दुनिया की सबसे बुद्धिमान प्रजाति। फिरंगी सबसे बेवकूफ प्रजाति, गोरे, उनको अपना बॉस बना दिया हमने। गड़बड़ी ये हो गई। तो आप तो बुद्धिमान, आपको इससे ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं ना। तो अभी क्या करेंगे, जरा देखते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, जरा देखते हैं कि ये बल आप कैसे बढ़ाते हैं, ये स्ट्रेंथ अपनी बॉडी का कैसे बढ़ाते हो। ठीक है, ये स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हो। आपका जो इम्यूनिटी है वो क्या है, व्हाट इज योर इम्यूनिटी, व्हाट इज रेजिलियंस, सहन शक्ति क्या है, जरा देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उंगलियों को ऐसे फंसा लो, उंगलियों को फंसा लो और खींचिए, जोर लगाइए थोड़ा। पीछे देखो, सांस रोक रखा, सांस रोका जोर लगाने के लिए, सांस रोका कि नहीं?
अच्छा ऐसे पुश करके देखते हैं, पुश करके देखते हैं, पुश करो, जोर लगाओ, सांस रोकने जोर लगाने के लिए। यू कांट क्रिएट एनी स्ट्रेंथ विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ। बिना सांस रोके आप कोई भी सामान उठाते हैं, वेट उठाते हैं, कैसे उठाते हैं? कोई हेवी वेट उठाया आपने, कोई हेवी सामान उठाया, सांस रोकते हैं? बिना सांस रोके उठा सकते हैं? नहीं उठा पाए। कहीं पर भी बल प्रयोग करना, wherever your body strength is needed, you hold your breath and create that strength. Walking, jogging, yoga, zumba, aerobics, climbing staircases, चेयर से भी उठना है तो भी आपको सांस रोकना होता है। सांस रोक लिया। तो आप शरीर का बल कैसे बढ़ाते हैं? सांस रोकते हैं। तो सीधा कोरिलेशन, शरीर का बल का स्ट्रेंथ कमजोर हो गया तो क्या कमजोर हो गया? सांस रोकने की क्षमता, कैपेसिटी टू होल्ड ब्रेथ वीक हो गया। सीधा सीधा कोरिलेशन। अच्छा खड़े होके कभी ट्राई कीजिए, हाँ, खड़े होके किसी और को बोलो कि आपको धक्का देने, आप बैलेंस बना के कैसे रखेंगे? हाउ विल यू क्रिएट दैट बैलेंस? यू विल होल्ड योर ब्रेथ एंड ट्राई टू गेट बैक इन बैलेंस। बिना सांस रोके आप बैलेंस में नहीं आते। या एक टांग पे खड़े हो जाइए, एक पांव पे खड़े होके बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो एंड सी हाउ डू यू क्रिएट बैलेंस। बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं? सांस रोक, है कि नहीं है? ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने की कैपेसिटी को कहते क्या है? हम इस बैलेंस बनाने की कैपेसिटी को कहते क्या है? इसी को इम्यूनिटी कहा जाता है, इसी को रेजिलियंस कहा जाता है, सहन शक्ति कहा जाता है। कोई आपको पुश कर रहा है मगर आप नहीं गिरे, आपने वापस संभाल लिया। ठंड लगी तो एकदम से बीमार नहीं हो गए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जरा सा मौसम बदला बीमार हो, यानी वो वापस हेल्थ की स्टेट में वापस नहीं आ पा रहे, उनकी स्ट्रेंथ कमजोर है, अंदरूनी स्ट्रेंथ कमजोर है। तो बैलेंस कैसे? इम्यूनिटी बढ़ाना है तो क्या करना? यही करना पड़ेगा, कुंभक करना पड़ेगा, आपकी ब्रेथ को होल्ड करने की क्षमता। अच्छा दूसरे तरीके से और भी आपको डिटेल में बता रहा हूं। आप लोग इतने समझदार हैं कि ये चीजें समझ सकते हैं, मगर कहां देख रहे हो? गूगल में देख रहे हो, स्क्रीन देख रहे हो, कहीं और यूट्यूब में, फेसबुक में देख रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो। किताब में तो लिखा ही नहीं, ये तो यहां पे लिखा हुआ है। आपका शरीर रोज ये काम कर रहा है, आपको यहां देखना पड़ेगा कि क्या कमजोर हो गया। अच्छा जिनको भी मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम, मसल वीक हो गया, ठीक है, मसल वीक हो गया, या इसका डायरेक्ट कोरिलेशन किसके साथ में? लिवर वीक हो गया। जिसका लिवर डिजीज है, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस या लिवर कमजोर है, फैटी लिवर, और जिसको मसल का प्रॉब्लम, ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे जुड़ते हैं। उस इंसान के नाक के पास में अपने कान ले जाओ, क्या करो? नाक के पास में कान ले जाओ और जरा उसकी सांस को सुनने की कोशिश करो। आप क्या देखोगे? आप देखोगे उसकी एक्सेलेशन ऐसे लंबी हो रही है, एक्सेलेशन लंबी हो रही है। तो लीवर को अगर ठीक करना है या मसल की प्रॉब्लम को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? आप अपनी सांस को भी देख सकते हो अगर आपको मसल का इशू है, ठीक है। क्या देखोगे आप? कि सांस लंबी हो रही है, यानी सांस लंबी जी, आपको आपका एक्सेलेशन पे कंट्रोल नहीं। वीकनेस क्या है? एक्सेलेशन पे कंट्रोल नहीं, वो छूटती है, एक्सेलेशन छूटती है। तो हम क्या करेंगे? हम आपको एक मेथड दे देंगे। क्या मेथड दे देंगे? 1 यूनिट, यूनिट का मतलब 5 सेकेंड मान लो, ठीक है, 5 सेकेंड इज 1 यूनिट। 1 यूनिट इनहेलेशन, 1 यूनिट होल्ड, रोकना, 4 यूनिट एक्सेलेशन करो, और ये आपका लिवर ठीक होता जाएगा। क्योंकि आपका शरीर भी यही कर रहा है, लेकिन आप दवाई खा के शरीर को ठीक नहीं होने देते। जब इंफेक्शन होता है, वायरल इंफेक्शन सबको हुआ होगा ना, सर्दी जुकाम सबको हुआ होगा ना, ये कोरोना हुआ होगा ना, सबसे पहली चीज क्या होती है? बुखार होता है, फीवर। 5 डिग्री राइज इन टेम्परेचर कैन किल एनी वायरस। आपका शरीर 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दे, कोई भी वायरस खत्म हो जाएगा। मगर आप क्या करोगे? पैरासिटामोल खा के टेम्परेचर कम कर दोगे।
इसको ठीक ही नहीं करने दो। शरीर दस्त कराएगा, सफाई करेगा, नहीं करने देंगे, गोली खा के रोक देंगे। उल्टी करेगा, गोली खा के रोक देंगे। मतलब ये शरीर को क्रिमिनल क्यों बना दिया आपने? लाखों सालों से इस शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, पिछले 100 साल के अंदर ही तो प्रॉब्लम आ रही है हमें। कभी भी लाखों सालों से ह्यूमन बॉडी को प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि ये ठीक कर सकता। मगर आज आपने इसको क्रिमिनल बना दिया। अब जरा हाथ को खरोंच लेंगे ना, जलन होता है ना, जलन होता है, इन्फ्लेमेशन कहते हैं इसको, इन्फ्लेमेशन। आपके बॉडी में पेन क्यों होता है? मेजरली इन्फ्लेमेशन की वजह से। और इन्फ्लेमेशन किस वजह से होता है? अगर आपके टॉक्सिन्स बढ़ गए, यूरिक एसिड बढ़ गया, है ना, यानी कि मेटाबॉलिज्म, लिवर कमजोर हो गया, मेटाबोलाइट ठीक नहीं हो रहे, तो वो टॉक्सिन आपके जॉइंट्स पे जमा होंगे और दर्द करेंगे। तो इन्फ्लेमेशन, जलन को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप सबको मालूम है ना क्या कर सकते हैं? घी लगा लो थोड़ा सा, जलन कम हो जाता है। होता है कि नहीं? थोड़ा घी लगा लो, मीठा ऑयल लगा लो, कोकोनट ऑयल लगा लो, जलन कम हो जाएगा। अब आप लिवर पे गोली खाते हो तो वो केमिकल बॉम्ब है ना, वो लिवर में फूटता है, तो उसको भी जलन होती है, तो वो बेचारा थोड़ा फैट क्रिएट करता है। तो आप क्या बोलते हैं? फैटी लिवर। गलत कर दिया, गलत कर दिया। अगर वो कॉर्टिसोल बनाता है, फैट, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा। रॉ मटेरियल क्या है कॉर्टिसोल का? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। वो बढ़ाता है क्योंकि आपके रिस्क बहुत है अंदर, तो कॉर्टिसोल बनाना है, तो आप वो भी गोली खा के कम करने की कोशिश करेंगे। ब्लड में शुगर बढ़ जाए, अनयूजेबल शुगर, शरीर क्या करेगा? प्यास लगा के फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करके उसको निकालना चाहेगा। आप चेक कर लोगे, अरे ब्लड में शुगर ज्यादा है, तो मेटफॉर्मिन, ग्लेवेनक्लेमाइड, ग्लाइकोलाइजाइड, अकारबोस, रोजीग्लेटाजोन, पायग्लेटाजोन, पता नहीं क्या क्या नाम रख रखा है फालतू का। ऐसी गोलियां खा लोगे और उस गंदगी को अपने शरीर में घुसा दोगे, फिर ऑर्गन डैमेज होगा। तो डायबिटीज से किसी को नुकसान इतना नहीं होता जितना कि डायबिटीज के इलाज से नुकसान होता। तो अगर इस पे मैं बात करूं तो ऐसे बात करता जाऊंगा ना, तो फिर तो कोई आपको फायदा तो नहीं होना। देखो गूगल दिमाग में भी भर लोगे, फायदा नहीं। तो मैं क्या कोरिलेट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट विथ, कि आपका रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ा दो। 3 चीजें, रिदम, बैलेंस, स्ट्रेंथ। रिदम का मतलब क्या होता है? जो कभी आपने डांस किया है, कोई स्पोर्ट्स खेला है, चलते हैं जब, तो रिदम में चलते हैं ना, एक लय में चलते। अलग अलग अनुपात में सांस रुकती है। इफ यू डांस, हाउ डू यू डांस? अपने लिम्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे? अलग अलग अनुपात में सांस रोकती है। तो 3 चीजें, रिदम, बैलेंस, स्ट्रेंथ। बैलेंस स्ट्रेंथ का एग्जांपल ले लिया हमने। ये तीनों चीजें अगर बढ़ानी है शरीर की, तो आपको कैसे बढ़ाना होगा? वो की क्या है, वो कुंजी क्या है? आपको कुंभक पे काम, अपने बॉडी के ब्रेथ होल्ड फैक्टर पे काम करना पड़ेगा। लेकिन केवल सांस रोकने से काम नहीं चलेगा, इट हैज टू बी डन इन अ प्रॉपर वे। तभी आपको रेशियो पता है। किडनी खराब है, 4 यूनिट इनहेलेशन, 2 यूनिट होल्ड, 1 यूनिट इनहेलेशन किडनी के ऊपर ट्रिगर जाएगा, वो ठीक होना, रिकवर होना शुरू होगा। तो इफ योर बॉडी कैन ओनली हेल्प यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मेडिसिन विल टेक यू टू डेथ, डेथ बेड तक ले जाएगा मेडिसिन। तो आप जितना मेडिसिन खाओगे उतना आप जल्दी जा रहे हो डेथ बेड, आईसीयू में ही लैंड करेंगे सभी, 100% गारंटी। और आजकल तो छोटे बच्चों को कह रहे हैं कि भाई हार्ट अटैक आ रहा है। आई हैव सीन अ न्यूज यस्टरडे, 19 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ रहा है, 19 ईयर। सोचिए, बैडमिंटन खेलते, स्पोर्ट्स के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो एक्सरसाइज भी आज के टाइम पे आपको करना है, तो हार्ट मजबूत होना चाहिए, लिवर मजबूत होना चाहिए, किडनी मजबूत होना चाहिए। कुंभक करके पहले मजबूत करो, फिर जितना मर्जी एक्सरसाइज करो, कुछ नहीं होगा। तो इस वक्त में आपको कौन बचा सकता है? आपका डॉक्टर, आपका परिवार, सरकार, WHO, अमेरिका बहादुर, कुछ कोई नहीं बचाने वाला। वो सब प्रोटेक्टेड है लॉ से। दवाई से अगर आप मरेंगे, कोई हेल्प नहीं करेगा। वो तो अच्छे के लिए खिला रहे हैं ना दवाई आपको, तो अच्छे काम में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो कोई गलत काम थोड़ी हुआ, तो आप अच्छाई में मारे जाओगे, 100% गारंटी। अच्छे के लिए ही लोगों को दुनिया में, गॉड के नाम पे ये पाश्चात्य लोगों ने मारा पहले, आज साइंस के नाम पे मार रहे। टैग लगा दिया साइंस का, फिर प्रोटेक्टेड बाय लॉ।
कानून भी उन्होंने बनाया हुआ। तो इस वक्त में एक तो गारंटी है, आपके बारे में भी गारंटी नहीं है कि आप जीना चाहते हैं कि मरना चाहते हैं, क्योंकि लोग सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन शरीर के बारे में 100% गारंटी, ये शरीर जीना ही चाहता है। नहीं तो नाक मुंह बंद करके देख लीजिए, ये शरीर जीने के लिए तड़पेगा। आप जीना चाहते नहीं जीना चाहते पता नहीं, आपको तो कुछ भी करवाया जा सकता है ना। आजकल तो शरीर पे बम लगा के भी उड़वा देते हैं ना। इतना इंस्पायर, इतना बेवकूफ बनाया जा सकता है इंसान को, मगर शरीर को नहीं बनाया जा सकता। ये जीना चाहता है, तो ये जीना चाहता है तो इसके पास रिकवरी का मैकेनिज्म भी है, इसके पास बीमारी से निकलने का उपाय भी है। आपका शरीर हर मोमेंट आपको बचा रहा है, केवल आपको मौका देना है ना। इसको क्रिमिनल ना बनाए, ये जो कुछ कर रहा है इसको गोली खा के खत्म कर देते हैं, उसको क्रिमिनल क्यों बना दिया हमने। तो इसको रिकवरी फैक्टर, देखिए आप बच नहीं सकते, हम तो ये नहीं कह सकते ना कि आप वहां मत जाओ, यहां मत जाओ, दवाई मत खाओ, डॉक्टर को मत दिखाओ, ये करो वो करो, फूड मत खाओ, हाँ ऑर्गेनिक फूड ले, कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे। तो वो सब तो अभी बोलने का मतलब नहीं है। हमें एनवायरनमेंट को ठीक करने जाएंगे 200-300 साल लगेगा। आज आपका शरीर आपको बचा सकता है, तो कैसे बचाएगा? जब उसमें रेजिलियंस होगा, जब उसमें उतना स्ट्रेंथ होगा, झेल जाएगा। आपने रेड लाइट पे बच्चे देखे, वो धूप में भी मिलेंगे, बारिश में भी मिलेंगे, ठंड में भी मिलेंगे, गर्मी में भी मिलेंगे, कुछ नहीं होता उनको, क्योंकि उनके शरीर का रेजिलियंस अच्छा है, सहन शक्ति ज्यादा है। तो सहन शक्ति अगर इस वक्त हमने तो तैयारी नहीं की ना, बचपन से आप सहन शक्ति बढ़ाने का काम नहीं किया, हमने तो सोचा कि भाई गर्मी लग रही है तो एसी चला लो, है ना। हमने तो यही सोचा ना कि अपने आप को आराम में रखो। भाई सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, लिफ्ट ले आओ, लिफ्ट से जाओ, यही कहते हैं ना। पैदल नहीं चलना जी, ठीक है, टू व्हीलर एटलीस्ट, दो व्हीलर तो है ही है सबके पास। थोड़ा 1 किलोमीटर भी जाना है तो दो व्हीलर में फट से चले गए। तो हमने अपने सहन शक्ति को खराब कर दिया, हमने अपने रिकवरी फैक्टर को खराब कर दिया, रेस्पॉन्स टू ट्रिगर मैकेनिज्म शरीर का खराब कर दिया, है कि नहीं है। तो उसको बढ़ाने की जरूरत है, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप कुंभक कर रहे हैं और आपकी रेजिलियंस ज्यादा है, रिकवरी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो कितने भी कोरोना फोरोना कुछ भी आए, आपको नहीं होगा कुछ, ये ध्यान रखिए। लेकिन कितनी भी दवाइयां बना लें, आप और खराब होते जाएंगे। तो अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाएं। सबसे जरूरी काम इसको ठीक करना है, इसके रिकवरी फैक्टर को ठीक करना है, इसके सहन शक्ति बढ़ानी है, इसके रीजनरेशन क्रिएट करना है, इसका रिस्क कम करना है। तो ये अष्टांग चिकित्सा वही है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको थोड़ा स्पेशलाइज बना दिया। कैसे बना दिया हमने? एक तो आपको एक बेसिक चीज सिखाते हैं, बेसिक कुंभक सिखाते हैं, उसके बाद उसको कस्टमाइज कर देते हैं। कस्टमाइज यानी आपको थोड़ा एनालिसिस, स्क्रीनिंग करते हैं, आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने बोलेंगे, सांसों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, इमोशन के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, अपने बॉडी के मूवमेंट के साथ में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, देखो कहां पे रुकावट हो रही है। तो हम नंबर्स के टर्म्स में आपसे बात करें, फिर उस नंबर को एनालाइज करते हैं कि अच्छा यहां पे कहां पे रुकावट हो, कौन सा फैक्टर वीक हो गया, और उसको इंप्रूव करने के लिए फिर कस्टमाइज कर दिया जाता है आपके मॉड्यूल को। आपको जो सिखाया उसको हर एक इंसान के हिसाब से अलग कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप अगर इस पे काम करते जाएंगे, एक गारंटी है, आपकी प्रॉब्लम सारी सॉर्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन कहां पे है? टाइम। अगर आपने 20 साल 30 साल 40 साल तक खराब किया है इसको, कम से कम 6 महीना साल भर तो आपको देना पड़ेगा, ये मान के चलो। लेकिन एक गारंटी है, एक 100% गारंटी है, आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। यू विल बी एम्पावर्ड। आज जो इतने सॉल्यूशन ढूंढ रहे, इतना ज्ञान है, उसके बाद भी अंदर से खुशी नहीं है ना। अच्छा स्माइल करेंगे, कम से कम स्माइल तो कीजिए, प्रॉब्लम तो सारी दुनिया को रहती ही है, एक स्माइल तो करें, ठीक है ना। आपको मालूम है स्माइल करने में कितने रिएक्शंस हुए आपके बॉडी में? 100,000 से भी ज्यादा। सपोज करो आपने कंडीशन लगा दी कि जब तक मुझे 100,000 रिएक्शन नहीं मालूम तब तक आई विल नॉट स्माइल। फिर मुझे बताइए कि आप कब स्माइल करेंगे? शायद कभी नहीं। तो ये बेकार के कंडीशन ना डालिए कि मुझे ये मालूम होना चाहिए, वो मालूम होना चाहिए, वो मालूम होना चाहिए, नहीं।
आप ऐसे भी स्माइल कर सकते हैं, बिना जाने भी स्माइल कर सकते हैं। इतना कंट्रोल है हमारे पास। वही कंट्रोल कुंभक का कंट्रोल है। इतना कंट्रोल है हमारे पास कि आपके शरीर में कुछ भी हो रहा, आप उसको रिकवर कर सकते। तो कुंभक वही तरीका है कि हम अपने बॉडी के ऑर्गन फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, इन सब चीजों से रिकवर करें, अपनी रेजिलियंस बढ़ाएं, स्ट्रेंथ बढ़ाएं, पेन फैक्टर्स कम करें, अपने जीवन को बहुत हेल्दी और सुंदर बनाएं। Okay, the next question is from Divya Chandwani, ma'am. My 13-year-old son is experiencing drooping eyelids since last few years. Any solution for this problem? आपने तो विस्तार में भी पूछा है। देखिए, ड्रूपिंग आईलिड, सिंपल सॉल्यूशन अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आप कहते हो ना कि लिवर, डॉक्टर आपको बोलता है ये लिवर को ठीक करेगा, ये दवाई उसको ठीक करेगी। नहीं नहीं नहीं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर चेक करके बोलता है आपके ब्लड में शुगर ज्यादा है, ये दवाई लो, ब्लड शुगर कम हो जाएगा, तो क्या आप डॉक्टर से पूछते हैं मेरी डायबिटीज ठीक होगी कि नहीं? तब वो आपको असली जवाब देगा, नहीं जी डायबिटीज तो ठीक नहीं होगी। तो आप काई की दवाई दे रहे हो मुझे? तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्या न्यूरो रीजनरेशन और स्ट्रेंथनिंग हो सकता है किसी दवाई से? नहीं हो सकता। देयर इज नो मेडिसिन इन द वर्ल्ड which can regenerate the nervous system and create a strength of your nervous system. नर्वस सिस्टम की स्ट्रेंथ के बारे में आपको मालूम है, जब आपका हाथ कंट्रोल में नहीं है, कई लोगों को पार्किंसन होता है ना, हाथ शेक करता है, हाथ कंट्रोल में नहीं होता। उनकी प्रॉब्लम भी क्या है, वो नसें कमजोर हो गई। तो कोई भी मूवमेंट, आईलिड का मूवमेंट हो, हाथ का मूवमेंट हो, पांव का मूवमेंट हो, ये सब किस वजह से होता है? आपका नर्वस सिस्टम यानी मोटर न्यूरॉन्स पे कंट्रोल कम हो गया। ये कंट्रोल कहां से होता है? आपकी रीढ़ की हड्डी से कंट्रोल होता है, मालूम है आपको? ये कंट्रोल कहां से होता है? रीढ़ की हड्डी से होता है। मेरुदंड कहते हैं उसको हम। मेरुदंड का मतलब आपको लाइफ का एक्सपीरियंस ही रीढ़ की हड्डी पे होता है। सेंटर ऑफ यूनिवर्स, मेरुदंड का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ, आपकी जो दुनिया है ना, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसका सेंटर आपका आपकी रीढ़ की हड्डी है। और आज के टाइम पे अगर आप देखें तो रीढ़ की हड्डी सबकी ही कमजोर हो चुकी है। इसीलिए अगर आप ध्यान से बच्चों को देखें तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, उनको हमेशा सपोर्ट चाहिए, उनको हमेशा सपोर्ट चाहिए। हम कमजोर हुए, हमारी कमजोरी हमारे बच्चों में ट्रांसफर हो गई। देखिए 100 साल पहले किसी को डायबिटीज नहीं थी, तो यानी वो हेल्दी लोग थे, हमने कमजोर किया अपने आप को, लेकिन हम अपनी कमजोरी अपने बच्चों में ट्रांसफर करेंगे, 100% गारंटी। क्या इसको एक किसी तरीके से ठीक किया जा सकता है? क्या एक चीज, क्या आपका लिवर आपके हार्ट के बगैर काम करेगा? क्या आपकी किडनी आपके लिवर के बगैर काम करेगी? क्या आपका नर्वस सिस्टम आपके किडनी के बगैर काम करेगा? नहीं, सब इंटीग्रेटेड है, सब इंटीग्रेटेड है। तो अलग अलग करके जब आप देखेंगे तो और खराब कर देंगे शरीर को। तो एक करके देखना पड़ेगा। क्या रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेंथन किया जा सकता? 3 चीजें आप हमेशा ध्यान रखिए, 3 अलाइनमेंट आपके शरीर, आपके बॉडी में जरूरी है फॉर अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। 3 अलाइनमेंट चाहिए आपके, 3 अलाइनमेंट चाहिए। नाभि, कौड़ी, नले। नाभि नेवल का अलाइनमेंट, कौड़ी चेस्ट के बीच का अलाइनमेंट, सेंटर ऑफ चेस्ट का अलाइनमेंट, और नले जांघों का अलाइनमेंट। जांघों का अलाइनमेंट सीधा सीधा आप देखोगे, हालांकि तीनों चीजें रीढ़ की हड्डी के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो हम इस प्रोग्राम में तो हमने स्पेसिफिकली न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर दिया, लेकिन बच्चों के केस में हम इसको बिल्कुल ही अलग तरीके से डील करते हैं। तो अगर मेरे ख्याल से आपने शायद विस्तार का अगर वेबिनार देखा हो तो फिर से वेबिनार होगा, हमने डायबिटीज को प्रोमिनेंट बना के किया था। बट डायबिटीज तो हम केवल लोगों को बताने के लिए कह रहे हैं कि जिन बच्चों को डायबिटीज है वो रिवर्स कर सकते, मगर वहां पे एक बेस है, मूलाधार, वहां से शुरू करते हैं। बच्चों में हम अलग तरीके से डील करते हैं, मूलाधार सबसे पहले बच्चों का स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो सारे बच्चे जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उनका मूलाधार स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, उनकी रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली उनकी सारी प्रॉब्लम केवल मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करके भी ठीक हो जाएगी,
लेकिन फिर उनको हम 12 लेवल पे ले जाएंगे, होलिस्टिक डेवलपमेंट उनके शरीर का। तो 6 महीने का कोर्स, जो 9 हफ्ते का मेन कोर्स है, उसके बाद 18 हफ्ते की प्रैक्टिस। इस तरीके से हम बच्चों को एक लेवल, फिर स्क्रीनिंग करेंगे, फिर दूसरे लेवल पे ले जाएंगे, तीसरे लेवल पे ले जाएंगे। बच्चों को के लिए हम केवल उनकी बीमारी को निकालने के लिए काम नहीं कर रहे, हम उनको लाइफ में बहुत पावरफुल बीइंग बनाना चाहते हैं। तो 13 साल से लेके ऊपर के लिए हम एक वेबिनार आगे कंडक्ट करेंगे। मगर 13 साल के लिए मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि वो वेबिनार अप्रैल में शुरू होगा। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इसी मार्च में जो नेक्स्ट वेबिनार आने वाला है, वेट कीजिए, अपना नंबर शेयर कीजिए, या पार्ट है तो रहिए, हम आपको लिंक भेजेंगे। यू join the webinar. If you have joined, you can join the program. I'm giving you this freedom. 13 साल 12 साल, हमने 12 तक बोला है, मगर 13 साल कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इमीडिएटली स्टार्ट, क्योंकि 13 साल में भी हम विनायक वाले में ही लेके आएंगे लोग, बच्चों को जो बेसिक कोर्स कराएंगे मूलाधार का, वो विनायक का जो कोर्स कराएंगे, अष्ट सिद्धि कुंभक उसमें देंगे, हम बच्चों को सिखाएंगे अष्ट सिद्धि कुंभक। वो दोनों में एक ही होगा, 12 साल से कम वालों में भी, 12 साल के बाद वालों में भी एक ही होगा। केवल नॉलेज बेस हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे कि बड़े बच्चे थोड़ा ज्यादा जानना चाहते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस कुछ भी चेंज नहीं। तो यू कैन ज्वाइन दैट प्रोग्राम, है ना, बिकॉज वी स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स है, बहुत काम करना है हमने, है ना, लेकिन लोग नहीं मिलते ना इतने जो आगे जा सके ना, और वो हर एक काम के लिए पैसा चाहिए होता है। हम किसी से फंड नहीं लेना चाहते, हम किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, हम चाहते हैं लोग ठीक हो। और लोग ठीक कैसे हो, वो कर्म दोष ना लगे उनको, फ्री फंड की चीज ना करें, पैसा देके ठीक हो, इससे कर्म दोष नहीं लगता, एक्सचेंज होता है, एंड उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका प्रोग्राम बनता है फिर, ठीक है ना। तो बच्चों का प्रोग्राम अलग तरीके से डील होगा, उसमें अभी जो चल रहा है विस्तार गुरुकुल का, ठीक है, उसमें ज्वाइन करा सकते हैं, 13 साल के बच्चे को ज्वाइन करा सकते हैं, आप करवा दीजिएगा, वहां पे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं यहाँ पर भी नंबर शेयर कर दीजिए, मैं उनको बोल दूंगा। और भी कुछ है 13 साल के जो कि करना चाहते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि 13-14 अभी इस वक्त में जितना जल्दी काम शुरू हो उतना अच्छा होगा ना अपने शरीर के ऊपर, तो ज्वाइन कर लें। Okay, हाँ the जी, next question is from Sakshi ma'am, who's suffering from uterine fibroids. यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या प्रॉब्लम होती है? बहुत कम केसेस में प्रॉब्लम होती है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर होता क्यों है यूट्राइन फाइब्रॉइड, हो क्यों रहा है? जरा ध्यान से सुनिए, ये सबके लिए जरूरी है, ठीक है ना, सबके लिए इतना जानना जरूरी है। ये फाइब्रॉइड का इश्यू नहीं है, सिस्ट बन रहे हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर गांठें बन रही है, जो कि बाद में चल के कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। लिम्फेटिक नोड्स में गांठें बन रही है, स्टोन्स बन रहे हैं। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, एनी काइंड ऑफ ग्रोथ, अनवांटेड ग्रोथ इन द बॉडी। अब जरा ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने बताया, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट किसी ने देखा नहीं, आप में से अंदाजा लगाते हो ना, इसमें ज्यादा इसमें कम, ऐसे ऐसे। तो आजकल हम बात ही हवाबाजी में करते हैं, सुपरस्टिशियस ज्यादा हो गए, साइंटिफिक नहीं रहे। पहले साइंटिफिक थे लोग, रियल बात करते थे, आजकल साइंस के नाम पर सुपरस्टिशन बहुत चलता है। तो साइंस का नाम ले रहे हैं, है सारा सुपरस्टिशन, ठीक कोई भी नहीं करता। डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर बोलेगा अरे तुमको तो डायबिटीज है, तो ठीक कर दो साहब, नहीं ठीक तो नहीं करेंगे। ब्लड प्रेशर है, ठीक होगा? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। थायराइड है, ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक होगा? नहीं हो, ठीक है। किडनी खराब है, किडनी चेंज करा लो। लिवर खराब है, लिवर चेंज करा लो। हार्ट खराब है, हार्ट चेंज कर। अरे ठीक तो कुछ करते ही नहीं है, फिर भी वहीं जा रहे हैं, फिर भी वहीं जा रहे हैं। तो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, इंसुलिन निकलना चाहिए, या आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, वो लिवर पे जाएगा, मेटाबॉलिज्म होगा, लिवर उसको काम करे। अब लिवर तो बेचारा कमजोर पड़ गया। आप कमजोर होते हैं तो ज्यादा काम करते हैं, कम काम करते हैं। आप आराम करना चाहते हैं, आपका लिवर भी आराम करना चाहता है ना, क्योंकि केमिकल खिला खिला के उसकी हालत खराब कर दी है, वो बेचारा काम नहीं करना चाहता। तो इंसुलिन कहां गिरता है आपका? इंसुलिन कहां जाता है? लिवर में जाता है। अब लिवर बेचारा कमजोर है, कहता है नहीं जी मुझे नहीं चाहिए, मैं काम नहीं करूंगा इतना।
इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसी को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज। भाई इंसुलिन तो लिवर ने इस्तेमाल नहीं किया तो इंसुलिन कहां रह गया? आपके ब्लड में रह गया। इस कंडीशन को हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। ऐसे ग्रीको रोमन शब्द हैं। देखिए पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा, ऐसे अंग्रेजी के शब्द बोलने से कोई समझदार नहीं होता। आप टाई लगाने से क्या आपकी बीमारी चली जाती है? सूट पहनने से क्या चली जाएगी आपकी बीमारी? नहीं जाएगी ना। तो हमको तो समझदार होना चाहिए ना। कोई आपको ऐसे सूट पहन के कुछ बोल देगा तो आप मान जाओगे क्या? कोई अंग्रेजी बोल देगा तो आप मान जाओगे क्या उसकी बात को? सही हो जाएगा क्या? नहीं। ग्रीको रोमन शब्द इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होता। ठीक है। तो इंसुलिन ज्यादा है ब्लड में। अब इंसुलिन काम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का को इस्तेमाल करने में यूज होता है, लेकिन इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन है, यानी कोई चीज को बढ़ा देता है। तो आपके शरीर में खून जहां भी ज्यादा उसका इस्तेमाल हो रहा है या ज्यादा क्वांटिटी में वो मूव हो रहा है, वहां पे ये ज्यादा मिलेगा। फीमेल में एक बात बताइए, खून कहां पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा उसकी एक्टिविटी होती है? यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब में, ओवरीज में। सबसे ज्यादा खून का इस्तेमाल वहां होता है। तो फिर क्या करेगा? वहां पे ग्रोथ करेगा, वहां पे कुछ बढ़ा देगा जबरदस्ती। तो एक कंडीशन का नाम सुना होगा आपने, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और डिजीज, पीसीओडी। नाम सुना है ना? तो पीसीओडी हो जाएगा। यूट्रस में ओवरग्रोथ सुना है नाम? फेलोपियन ट्यूब, चॉकलेट सिस्ट हो जाता है, ओवरग्रोथ होती है यूट्रस में फाइब्रॉइड होगा। तो क्यों हुआ? क्योंकि आपने जो बचपन से केमिकल खाया उससे लिवर कमजोर हुआ, हाइपर इंसुलिनीमिया हुआ, और इंसुलिन बढ़ गया आपके बॉडी में, या तो आपको डायबिटीज भी बोल देंगे, डायबिटीज टाइप 2 है जी आपको, और फिर यूट्रस में फाइब्रॉइड होगा। तो कोरिलेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि यूट्रस में फाइब्रॉइड मतलब एक दिन अचानक से हो गया। नहीं 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 नहीं, ये तो लगातार चल रही है डिजीज। अगर आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो कैंसर टाइम फैक्टर है, बस कब होने वाला है, बस इतनी सी बात है, कब होने वाला है। क्योंकि आपके कैंसर का टेस्ट केवल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म टेस्ट है, नॉट कैंसर टेस्ट। तो आपको टैग कर दिया जाएगा। अब मुझे बताइए कि इसको ठीक कैसे करोगे? ऑपरेट करके ठीक हो जाएगा? भाई फाइब्रॉइड को ऑपरेट करके आप निकाल सकते, जरूरत पड़े तो निकाल लीजिए, मगर ऑपरेशन ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ ना। दोबारा हो जाएगा। दोबारा होगा कि नहीं होगा? दोबारा हो जाएगा। आप स्लिप डिस्क हुआ, वहां ऑपरेट करा दो, दूसरा डिस्क स्लिप हो जाएगा। एक शोल्डर फ्रोजन है, करवा दो, दूसरा हो जाएगा, क्योंकि आपने बीमारी तो ठीक करी नहीं। जो मेटाबॉलिक इशू था, जो लिवर का इशू था, जो फ्लो हार्मोनल फ्लो का इशू था, वो जो भी इशू था, रिस्पॉन्स टू ट्रिगर मैकेनिज्म गड़बड़ होने की वजह से हुआ, वो तो आपने ठीक किया नहीं। यानी आपने स्ट्रेंथ फैक्टर अपनी बॉडी के तो बढ़ाए ही नहीं, रिकवरी फैक्टर तो बढ़ाया ही नहीं। तो फाइब्रॉइड का इलाज क्या है? कुछ भी इलाज नहीं है। क्या ऑपरेशन किया जाना चाहिए? अगर बहुत जरूरी हो तभी। अगर बहुत पेन करने लग गए फाइब्रॉइड्स, तभी ऑपरेट कराइए, वरना फाइब्रॉइड कोई इशू होता नहीं है। मेटाबॉलिज्म ठीक करिए, धीरे धीरे फाइब्रॉइड ठीक हो जाए। हम एक गर्भाधान का प्रोग्राम करते हैं, कंसेप्शन, फर्टिलिटी एंड कंसेप्शन का प्रोग्राम करते हैं। वहां पे लेडीज को फाइब्रॉइड कुंभक करते हैं, ठीक हो जाता है, कंसीव कर लेती हैं। वो फाइब्रॉइड की वजह से डॉक्टर ने कहा कंसीव नहीं कर रहा। हमारे पास मैं देखिए कितने केसेस, कहते हैं एमएच काउंट ठीक नहीं होता। दुनिया में इकलौता प्रोग्राम है जिसमें एमएच काउंट ठीक होता है। ये दुनिया में इकलौता प्रोग्राम है अष्टांग चिकित्सा, जहां पे कि माइस्थीनिया ग्रेविस, ड्रॉप फुट, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल, कोई प्रॉब्लम उठा लीजिए, वो सारे ठीक होते हैं। लकवा मार गया, वो ठीक हो जाता है बंदा। पैरालिटिक बंदा ठीक हो जाता है, सेंसेशन वापस आ जाते हैं, विच इज एन इम्पॉसिबिलिटी। मगर ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एलोपैथी में इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है, मगर आपके शरीर के लिए इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज योर बॉडी हैज बीन डूइंग इट फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों से कर रहा है आपका शरीर। तो क्या यूट्रस में फाइब्रॉइड या यूट्रीन फाइब्रॉइड क्या बहुत बड़ी इशू है? बहुत बड़ी इशू नहीं है, लेकिन क्यों हुआ वो एक बहुत बड़ा इशू।
तो उसको ठीक कीजिए। हाइपर इंसुलिनीमिया कैसे ठीक करेंगे, वो ठीक कीजिए। लिवर को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो ठीक कीजिए। मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग कीजिए, रिकवरी फैक्टर को ठीक कीजिए। आप देखिए, एक नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे आप। Okay, the next question, we'll take up the question from the chats, from the people who have raised their hand. Manisha, ma'am, you can ask your question. Please unmute yourself. Ma'am, please unmute yourself. Alka Malik, ma'am, you can unmute yourself. Hello. Yes, हाँ जी, Manisha, ma'am, बोलिए। first ask your question and then Yeah, Alka Malik. हाँ, मैं पुणे से हूँ और मुझे डिस्टल मायोपैथी है 15 साल से, तो ठीक हो सकता अच्छा, है क्योंकि मैं काम इसमें तो- मेडिसिन नहीं है, ये तो मुझे पता है, मैं सिर्फ एक्सरसाइज ही करती हूँ, हाँ। इसलिए डिस्टिल मायोपैथी का मतलब आप समझते हैं ना, यस, क्या होता है मायोपैथी? मसल से रिलेटेड। मसल से रिलेटेड। तो डिस्टल क्यों कह रहे हैं उसको? शायद रीढ़ की हड्डी से उसका नाता होगा। हाँ, ये स्पेसिफिक जगह पे हो रहा है। तो ये डिस्ट्रॉफी कहते हैं ना, एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वैसी ही ठीक है ना, वैसी ही। अच्छा, मसल डिस्ट्रॉफी क्या मतलब? मसल बन नहीं पा रहे वहां पे। आसान शब्द में बोलो तो, ऐसे बड़े बड़े शब्द बोलने से ना कोई ठीक तो हुआ नहीं आज तक। मसल लेकिन बन नहीं पा रहे। इसमें फूड ड्रॉप होता है मुझे। हाँ हाँ, देखो, मसल अगर ठीक नहीं बन पा रहे या मसल ड्राई हो रहे हैं, रीजनरेट नहीं हो पा रहे, तो वहां से मसल के अंदर नर्वस सिस्टम एम्बेडेड, नसें घुसी होती हैं, तो वो काम नहीं करती, इनसेंसिटिव हो जाती हैं, तो आपका कंट्रोल खो जाता है। जो मोटर नर्व्स हैं वो काम नहीं करते, तो आपका कंट्रोल खो जाता है, तो उसे ड्रॉप कहते हैं। आप उठाना चाह रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो, गिर रहा है। यस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है अब आप ही बताइए। वहां मसल बन नहीं पा रहे, शुरुआत मैंने कैसे किया था? रीजनरेशन नहीं हो पा रहा मसल का। क्यों नहीं हो पा रहा मसल का रीजनरेशन? क्योंकि मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने की कौन सी दवाई होती है? कोई दवाई नहीं होती। दूसरे तरीके से मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा तो क्या सिम्टम, क्या आपको कैसे पता चलेगा मेरा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो गया? आपकी भूख। लेकिन हाँ। मैंने पंचकर्मा किया, उसमें बस्ती और वो लिया, तो उससे मुझे फर्क जरूर मिला है। ओके, बट वेरी स्लो, प्रोग्रेसिव नहीं है, बट स्लो चल रहा है। तो मेटाबॉलिज्म तो क्लीन है, ये मुझे अंदर से फील हो रहा है। अच्छा, मैं आपको फिर और कोरिलेट करवाता हूँ। ओके सर। ठीक है। पंचकर्मा में आप बाहर से शरीर को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं ना। देखिए, कोई भी दवाई हो, वो बाहर से आप शरीर को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं ना। एलोपैथी दवाई हो चाहे आयुर्वेदिक दवाई, दवाई तो बाहर से ही ले रहे हैं ना। इट इज जस्ट लाइक फूड ना, जैसे आप बाहर से फूड लेते हैं वैसे बाहर से दवाई लेते हैं। सही बात। या फिर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और सफाई कर देते हैं किसी जगह की। राइट। इस जगह की सफाई करने से मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता आपके शरीर का। ओके। मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ तो आपके शरीर का स्ट्रेंथ है ना। तो पंचकर्मा तो सफाई है ना, सपोर्ट है। पंचकर्मा सपोर्ट से बॉडी रिकवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्या बता रहा हूं मैं? बॉडी रिकवर करने की कोशिश करेगा, लेकिन बॉडी की रिकवरी स्ट्रेंथ अगर कमजोर है तो धीरे धीरे करेगा ना वो। क्या वो पूरा कर पाएगा? क्वेश्चन मार्क। ये आपको समझना होगा। जब आप स्ट्रेंथ कहते हो तो दवाई से स्ट्रेंथ नहीं आता, फूड से स्ट्रेंथ नहीं आता। पंचकर्मा भी सपोर्ट है। सफाई कर दिया, ऑयल यूज किया किसी जगह पे, मसाज कर दिया, थोड़ा पेन फैक्टर्स कम हो गए, शरीर की थोड़ी सफाई हुई, तो आपकी भूख थोड़ी सी खुलेगी। लेकिन एक बात बताऊं, मैं आपको एज अ सिम्टम बताता हूं। कुंभक जब लोग करना शुरू करते हैं तो क्या हमको रिपोर्ट करते हैं, वो समझो। हमको वो दो चीज इनएविटेबली सभी रिपोर्ट करते हैं। एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो। दो चीज रिपोर्ट करते हैं। पहली चीज क्या रिपोर्ट करते हैं? कहते हैं मेरी बॉडी की एनर्जी बहुत बढ़ गई।
अब मैं जो काम मैं चल नहीं पा रही थी, वो चलने लग गए। हम काम नहीं कर पाते, शरीर में बहुत वीकनेस आता है, वीकनेस ठीक हो गया। इसका मतलब सबसे पहली चीज क्या हमने किया, बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। इसी को आयुष कहते हैं। आयुष का मतलब होता है अलाइवनेस, एनर्जी बॉडी की, वो बढ़ा दी हमने। ठीक है ना, एक चीज तो ये। दूसरी चीज जो हमको रिपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि मेरा डाइजेशन इंप्रूव हो गया। ऐसे लोग हैं जिनको आईबीएस है, ऐसे लोग हैं जिनको डाइजेस्टिव बहुत सारी इश्यूज हैं, दवाई खा खा के उन्होंने 20 साल 25 साल लगा दिए, उसके बाद वो रिपोर्ट करते हैं, कुंभक करते ही रिपोर्ट करते हैं अरे मेरा डाइजेशन इंप्रूव। तो इसका मतलब दो चीज तो इनएविटेबली गारंटीड तरीके से हो रहा है आपके शरीर के अंदर, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो रहा है। तो अगर आप पंचकर्मा करवाना चाहते हैं तो हम उसके लिए मना नहीं करेंगे। आयुर्वेद भी ठीक है, एलोपैथी से बढ़िया आप आयुर्वेद की तरफ में जाओ, पंचकर्मा करवाइए, बहुत सपोर्टिव होगा। मगर सपोर्टिव होता है, ये वर्ड ध्यान से सुनिए, सहायक है। सहायक कैसा सहायक है, जैसे व्हील चेयर पे, पांव कमजोर है, व्हील चेयर पे बैठे तो थोड़ा कहीं जा सकते हैं, लेकिन पांव मजबूत इतने नहीं हो जाएंगे आपके जब तक आप चलोगे नहीं। तो कुंभक चलने जैसा है, आपके एनर्जी को बढ़ाने का डायरेक्ट मेथड है, आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने का सीधा मेथड है। बाप रे, कितना बात करते हैं। बाकी सब सपोर्ट करेंगे आपको, तो आपकी बॉडी रिकवर करने में हेल्प होगा, ऐसा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Alka Malik ma'am, you can ask your question. Alka Malik ma'am, please unmute yourself. हाँ जी, आ Yes रही है, ma'am, वॉइस you're आ रही है? audible. हाँ जी, हाँ Yes, जी, yes. बोलिए। सर, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, अलका। मेरी प्रॉब्लम ये है कि एक तो मेरी बॉडी में वाटर रिटेंशन है, और साथ में ये है कि मैं 3 साल पहले स्लिप हो गई थी। उससे क्या कि मेरी L5 से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, MRI में बल्जिंग आया है। तो जब मैं बहुत ज्यादा देर बैठ जाती हूँ तो मेरी बैक जो है वो थोड़ी स्टिफनेस होने लगती है, लोअर बैक स्टिफ होने लगती है। और यदि वो स्टिफनेस किसी दिन तेल वगैरह ऑयलिंग वगैरह करती हूँ, और मैं एलोपैथिक नहीं खाती, मैं होम्योपैथिक लेती हूँ। थोड़ा एलोपैथिक से मुझे थोड़ा, हमारी फैमिली में इतना लेते नहीं है, शुरू से आदत नहीं है, होम्योपैथिक लेते हैं। तो मेरी क्या है, थाई में ना एक स्टिफ जैसे नस अड़क सी जाती है, फिर उसको गर्म ऑयल से थोड़ा मसाज करना पड़ता है। एक मेरी ये मेन प्रॉब्लम है कि जो मेरा बैक का, वैसे इतनी कोई मतलब दिक्कत नहीं, लेकिन ये बैक का लेके अब दिक्कत है 3 सालों से, मतलब ऐसे ही चल रहा है, कभी ठीक है कभी नहीं है। और घर में सब तरह का काम मैं करना ही पड़ता है मुझे ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले मदर ओल्ड थे तो उनको देखना था। अब इसको मैं समझा देता हूँ आपको, सॉल्यूशन दे देता हूँ, बता देता हूँ क्या है ना। आपने जो बताया ना उसका क्रक्स, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मगर उसका कोर मैं आपको बता देता हूँ आपके प्रॉब्लम क्या है और कैसे आप इससे निकल सकते हैं। ऐसे ये मल्टीपल इश्यूज। तो आयुर्वेद में एक चीज कही जाती है, इसे कहते हैं कफ वात दोष। कफ वात दोष होता क्या है? कफ वात दोष ऐसा होता है कि आपके बॉडी में कोई चीज ना फ्लो, एक डायरेक्शन का जो फ्लो होता है आपके बॉडी का, वो रुकावट आती है उसके अंदर। तो आप जरा ध्यान से सुनिए कि जिनको कफवात दोष होता है ना, उनको एक्चुअली डाइजेशन जिसे कहते हैं ना, डाइजेशन में भी इश्यू रहता है, क्योंकि आप जो खाएंगे ना वो एक डायरेक्शन में बहुत आसानी से नहीं फ्लो होगा, थोड़ा जोर लगाने पे होगा। तो क्या होता है, ऊर्ध्वगत वायु जो फ्लो है वो उल्टा हो जाता है, जो फ्लो है वो उल्टा आ जाता है। उसकी वजह से ऐसे लोगों में देखने को मिलता है कॉन्स्टिपेशन, बीच बीच में ऐसे लोगों में होता रहता है, डाइजेशन का इश्यू होता रहता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, कोई चीज एक जगह पे जा रही है, क्योंकि आगे फ्लो नहीं हो रही तो अटक रही है। जरा ध्यान से सुनिए, वाटर रिटेंशन आपने बताया, वाटर रिटेंशन है क्या, एक जगह मूव नहीं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। सीधा सीधा अगर सॉल्यूशन बताऊं, अंदर थोड़ा जोर लगाओगे तो मूव करने लग जाएगा। हमारे प्रोग्राम में लोग आते हैं, कहते हैं वाटर रिटेंशन है, कहते हैं फैट बढ़ा हुआ है, वेट कम ही नहीं होता। हमारे प्रोग्राम में लोग आते हैं, कहते हैं गैस बनती है, गैस सिर में चढ़ती है, और वो
कुछ समय कुंभक करने के बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये बहुत आसानी से सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप रेनिटिडीन खा रहे हैं या फिर इस तरीके ओसिड खा रहे हैं तो इससे सोल्यूशन नहीं मिलता। ज्यादातर लोग ये खाते रहते हैं। कई लोग हैं जो कि जेब में ही रखते हैं रेंटैक और हमेशा खाते रहते हैं। कुछ लोग नहीं यूज करते, मगर बॉडी में प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होता वो। तो कफ वात दोष का एक जगह से दूसरी जगह चीज मूव नहीं करती। यही चीज आपके नर्वस सिस्टम में भी इंपैक्ट डालती है। नर्वस सिस्टम में, रीढ़ की हड्डी में, जहां पे कि मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। एक और सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपका स्टिफनेस बॉडी में कहीं पर भी है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, कहीं भी स्टिफनेस है तो उसमें जरा सा हीट लगाओगे, आप गर्मी लगा दोगे ना, वो लूज होता है। तो आपको खाने का भी ऐसा मन करेगा, बहुत गर्म चीज। आपको मन भी ऐसा करेगा, गर्म चीज खाने का मन करेगा। थोड़ा ठंड में प्रॉब्लम होगी, गर्मी आपको अच्छा लगेगा, गर्म पानी से नहाने का मन करेगा। कुंभक अगर थोड़ी थोड़ी देर आप करें बैठ के, यानी कि सांस को रोकने की कोशिश करें, जितनी आपकी कैपेसिटी है थोड़ी थोड़ी देर करते जाएं, 15 मिनट, आप देखेंगे आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, पसीना आ जाता है कुछ लोग। मैंने जो लोग हठ योग करते हैं, आसन योगासन वगैरह करते हैं, उनको मैंने कुंभक करा के फिर उनको आसन योगासन करवाया। वो कहते हैं कि हम ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गए। ठीक है ना। तो कुंभक सीधा सीधा आपके जॉइंट्स पे फ्लेक्सिबिलिटी, गर्मी बढ़ा देता, फ्लेक्सिबिलिटी लाता, और फ्लो, इसी गर्मी के कारण जिसे हम जठराग्नि कह रहे हैं, आपका फूड भी डाइजेस्ट होता है और एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। पानी का इस्तेमाल भी इसी वजह से होता है, फैट का इस्तेमाल भी इसी जठराग्नि या अग्नि, जो गारे पत्ते अग्नि आपके शरीर के, इसकी वजह से होता है। ये कैसे बढ़ाएंगे? कुंभक सीधा सीधा आपकी गारे पत्ते अग्नि बढ़ाता है। तो एक तो ये कि इससे सीधा बता रहा हूं कि ये सोल्यूशन है। कफवात दोष में कुंभक जैसे ही आप करेंगे, आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलना चालू होता है। कई लोग कहते हैं कि हमें गैस बहुत बनती है जब हम कुंभक, बहुत निकलती है, क्योंकि वो जो जमी हुई चीज है, जिसे आप वाटर रिटेंशन भी कहें या गैसेस रिटेंशन कहें, वो सब फ्लो होना चालू होता है, निकलना चालू होता है, और इस वजह से आपको रिलीफ मिल जाएगा अंदर। वाटर रिटेंशन बहुत आसानी से निकल जाएगा। कई लोगों का लंग्स में पानी जमा, हम कैंसर का प्रोग्राम करते हैं, उसमें हमने देखा कि जिनको लंग का कैंसर था, जो लंग में पानी जमा होता था, जब वो कुंभक करने लगे तो उनको लंग में रिटेंशन नहीं हुआ कभी भी। तो कितना सीधा सीधा प्रूफ है ना। ऐसे सब टेस्टिमोनियल्स हमारे पास में है जिससे ये निकल जाएगा। एक मिनट सर, जो वाटर रिटेंशन है ना, वो इतना मेजर नहीं है, मतलब वो मेरी सेकेंडरी है। मेरा जो मेन अभी प्रॉब्लम है वो मेरा जांग में, मुझे कई बार चलने में एकदम दिक्कत आती है, और मेरी जो स्पाइन है वो मेरी जान, मतलब वो मेरे लिए बहुत टेंशन वाला मामला। ये मैं पहले भी लिख चुका हूँ, ये बता दिया मैंने कि नाभि कौड़ी नले, नले में मैंने क्या बताया था? जांघें। हाँ जी, जांघें, ये एक अलाइनमेंट अगर आपकी जांघों का नहीं होगा, और ये जांघें जो है, यहाँ पे एक सियाटिका नर्व होती है जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ में जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना। जब ये अलाइनमेंट, हाँ, जब ये अलाइनमेंट अगर करेंगे ना, हाँ, सियाटिका का है ना, तो हम एक प्रोसेस करते हैं। आपको सीधा प्रोसेस बता रहा हूं मैं। हम 3 चीजें करवाते हैं अपने प्रोग्राम में: अंगन्यास, मर्म विन्यास या हठ विन्यास, और तीसरा कुंभक थेरेपी। जो मर्म विन्यास या हठ विन्यास हम कर रहे हैं, उसमें हम एक प्रोसेस देते हैं लोगों को, उसे कहते हैं समर्पण हठ कुंभक। समर्पण हठ कुंभक एक्चुअली आपकी सियाटिका के लिए है, और आपकी रीढ़ की हड्डी को खोलता है और बॉडी के लेफ्ट एंड राइट को अलाइन करता है। इसमें भी हम सांस रोक के एक प्रोसेस करते हैं। तो ये जब तक आप वो अलाइनमेंट नहीं करेंगे, सोल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। वो अलाइनमेंट ही इसका सोल्यूशन है। इसका क्योर है आपके पास, है ना? जो मुझे हाँ जी, क्योर है, वही तो मैं बता रहा हूँ, इसका क्योर है। इसलिए मैं आपसे बात पूछना चाह रही थी कि आपके यहाँ कोई दवाई का नहीं, सिर्फ ब्रीथ से आप करवाओगे, है ना? ब्रीथिंग पे करवाओगे जो करवाना है, दवाई भी देते इस तरह की? नहीं, ब्रीदिंग से नहीं करवाते हम कुंभक से करवाते हैं। ब्रीदिंग नहीं होता। कुंभक जो होता है उसमें ब्रेथ का इस्तेमाल होता है, मगर आपकी बॉडी के मूवमेंट्स का और हाथ पांव के मूवमेंट्स का भी इस्तेमाल होता है। खाने का कुछ नहीं होगा ना? खाने का हम नहीं, हम वो प्रोग्राम में नहीं होता, मगर हमारा एक आयुर्वेदिक फर्म है, उसके अंदर जैसे आर्थराइटिस है, इन सब चीजों को लेके लिए कुछ जड़ी बूटियां भी हैं अगर आप चाहें, और ऑयल भी है दर्द का, वो बहुत पावरफुल दर्द का ऑयल है, वो सपोर्ट है सब।
आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी दवाई बाहर से सपोर्ट है, ट्रीटमेंट नहीं होता। फूड भी बताते हैं, फूड के बारे में भी बताते हैं, मगर वो भी सपोर्ट है, वो ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है ना? ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ट्रीटमेंट कुंभक है। ओके सर। सर आपका दिल्ली में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप एक ऑफलाइन? नंबर, आप देखिए, आप नंबर छोड़ दीजिए इसमें। अब कोई आपको बाकी जितने सवाल हैं वो बता देंगे, हम कोई दूसरा सवाल ले लेते हैं, है ना, प्रॉब्लम वाला। दिल्ली में जो भी है वो आपको सारा कोई ना कोई कॉल करके सारा डिटेल दे देगा। Gayatri Swami ma'am, you can ask your question. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन हम लेंगे। Gayatri Swami ma'am, Namaskar. yes. Namaskar. Am I audible? Yes. या गो अहेड। नमस्कार, प्रणाम स्वामी जी। मैं बहुत ऋणी हूँ आपकी, आप ये जो उपक्रम चला रहे हैं। मुझे मैं 40+ हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, और मुझे इतना डर फील हो रहा है कि आप इतनी सच्चाई बता रहे हैं कि मुझे मालूम है कि मेरी फील्ड में मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट सप्रेशन से ही हो रहा है, और आप उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट ट्रीटमेंट हम सबको बता रहे हैं। मुझे मेरा बोलना है आपको कि मेरा भी ऐसे रिवर्सल हुआ है कि मैं आई वाज वेरी फिट, एकदम योगा करने वाली, 1 घंटे में 108 सूर्य नमस्कार करने वाली से मेरा डिक्लाइन ऐसे हुआ कि हेपेटाइटिस ई हुआ मुझे मिड 30s में। उसके बाद पैरासिटामोल इंड्यूस हेपेटाइटिस हुआ मुझे सेम 6 महीने के अंदर। उसके बाद मुझे फेशियल पैल्सी हुआ। उसके 2-3 साल के बाद मुझे सोराइसिस प्रेसिपिटेट हुआ स्किन का, वो उसका ट्रीटमेंट चालू था। तो उसके बाद मुझे सोराइटिक आर्थराइटिस प्रेसिपिटेट हुआ, और स्किन लेजन्स मेरे बॉडी में और स्कैल्प में बहुत बढ़ गए हैं, और मेरी जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो जो काम नहीं करी है, इसलिए मैं आपके सामने हूँ। और ये इसके साथ साथ रिसेंटली मुझे मेटाबॉल ओवरवेट भी हो गया है सब प्रोसेस में, स्टेरॉइड्स खा खा के ऑलमोस्ट मैं 30-40 केजीज वेट गेन किया है मेरे बेसलाइन वेट से, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का भी अभी शिकार हूँ। मुझे डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन अभी चला गया है मेरा, लेकिन स्टिल डायबिटीज है, कंट्रोल में है फिर भी है। और तो ये पॉली अर्थाल्जिया भी है सोराइटिक आर्थराइटिस से, और एंथेसोपैथी भी है, यानी अलग अलग टेंडन्स ऑल ऑफ अ सडन स्वेल हो जाते हैं और दुखना स्टार्ट होता है। कभी ये लिटिल फिंगर टो की, फिर राइट की, फिर लेफ्ट की, फिर एल्बो, फिर शोल्डर, फिर नी, ऐसे रोटेट होता रहता है। एक हो गया तो फिर दूसरा ऐसे, और ये स्किन लेजन्स भी कम नहीं होते। तो इसका जो इंटर रिलेशन क्या है, आप मुझे बता पाए, आप मेरी हेल्प कर पाए तो है, मैं देखिए, आपकी ऋणी रहूंगी। आप इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। कोई भी केमिकल जो हम आजकल व्हाट वी आर कॉलिंग एज ट्रीटमेंट इज बेसिकली, हम क्या कर रहे हैं, बॉडी के अलग अलग रिसेप्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और रिसेप्टर को कौन बाइंड करता है केमिकल, ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द रिसर्च दैट इज गोइंग ऑन। तो रिसेप्टर बाइंडिंग मैकेनिज्म इकलौता तरीका है जिसके कारण कि हम कहते हैं कि हम ट्रीटमेंट करते हैं ना। रिसेप्टर बाइंड करके आप थोड़े समय के लिए तो शरीर को उसके कंट्रोल से हटा देते हैं, मगर किसी को उसके कंट्रोल से हटाना कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं हो सकती। दिस इज जस्ट लाइक अ रेप ना। कोई आदमी किसी औरत का रेप करना चाहे, उसके हाथ पांव शिथिल कर दे, बिल्कुल ऐसा कोई ड्रग दे दे, उसके बाद ऐसा कर रहे, यही काम तो हम कर रहे हैं ना, ऑन द नेम ऑफ साइंस। हम बॉडी का रेप ही तो कर रहे हैं। तो रेप करने के बाद में हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बॉडी का कंट्रोल वापस आ जाएगा? वो लेना भी चाहेगा तो भी वो हो नहीं पाएगा। तो अभी जो सडन एपिसोड आ रहे हैं, द बॉडी विल ऑलवेज ट्राई टू रीगेन कंट्रोल ओवर इटसेल्फ, इजंट इट? बिकॉज इट इज द किंग। योर बॉडी इज फंक्शनैलिटी इज द किंग ना, इट इज रूलिंग द बॉडी। इसी की वजह से वही तो हार्ट अटैक, हार्ट बीट करवा रहा है, वही लिवर फंक्शन, कार्डियक फंक्शन, न्यूरो फंक्शन, किडनी फंक्शन, लंग फंक्शन, सब तो वही करवा रहा है ना। सिंपल तरीके से कि व्हाट वी आर कॉलिंग एज अ ट्रीटमेंट कैन बी डन। देखिए, इसको भी मैं कह रहा हूं कि ठीक है, क्योंकि हमने इमरजेंसी केयर तो दुनिया में किसी और को ऑप्शन ही नहीं दिया, उठने ही नहीं दिया। तो इन whenever there is emergency, a little management can be done using these drugs. लेकिन it cannot be a treatment. It cannot be a therapy. आप ट्रीटमेंट का नाम तो ना नहीं दीजिए कम से कम। So कहने का मतलब ये, जब आप
जब आप कोई किलर खाते हो, जब आप एंटी एलर्जिक खाते हो, एंटी हिस्टामिन अगर आप ले रहे हो तो एंटी ले रहे हो ना। आप जब पेन किलर खा रहे हैं तो पेन का मैकेनिज्म को आप कट ही तो कर रहे हो ना। तो कोई चीज को बाधा देके अगर हम कोई रिजल्ट लाना चाहें तो इट विल बी एक्सप्लॉइटेशन। इट इज कॉल्ड एज एक्सप्लॉइटेशन, नॉट अ थेरेपी। तो आप जितना एक्सप्लॉइट करोगे उतना बॉडी जो है, बॉडी का कंफ्यूजन और रिएक्शन उतना एग्रीवेटेड होता जाए, क्योंकि ये तो जिंदा रहना चाहता है ना। इम्यून रेस्पॉन्स जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बॉडी अपने आप को क्यों खराब कर रहा? खराब नहीं कर रहा, इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि वो देख रहा है इतने में काम नहीं चल रहा मेरा। तो उसको इम्यून रेस्पॉन्स को ही आजकल वो ही प्रॉब्लम हो गया, दैट वी कॉल एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हम कह रहे हैं हमारी इम्यूनिटी हमें खराब कर, ऐसा थोड़ी होता है कि हमारी इम्यूनिटी हमें खराब, वो तो जिंदा रहने की कोशिश कर रही है, मगर यू आर फोर्सिंग इट टू गो डाउन अगेन एंड अगेन। तो इसका इलाज क्या है? आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आप स्टेरॉइड खा लेते हो, उसको डाउन कर देते हो। कैन इट बी कॉल्ड एज अ ट्रीटमेंट? ये तो ट्रीटमेंट नहीं है ना, ये तो ट्रीटमेंट नहीं, ये तो एक्सप्लॉइटेशन है। तो कहने का मतलब ये कि ये आप अपनी बॉडी में देख रहे हो, ये बॉडी इज जस्ट रिएक्टिंग। तो बैलेंस में तो लाना पड़ेगा ना, है ना। इसका जो जैसे कहते हैं ना रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जो है, उसको कहीं ना कहीं हमारे को बैलेंस में लाना पड़ेगा। और वो कब बैलेंस में आएगा? क्योंकि आप रिस्क से भी, आपका शरीर आपको एक्चुअली रिस्क से बढ़ा, आप रिस्क डालते जा रहे हो, वो रिस्क से बढ़ाने की कोशिश करता जा रहा है, इज गोइंग अहेड, आगे जा रहा है। जितना वो रिस्क को बढ़ा रहा है, आप उतनी ज्यादा दवाइयां डाल रहे हो उसको। रिस्क को कम करने की कोशिश कर रहा हो, उतनी ज्यादा आप दवाई बढ़ा देते हो, उतना ज्यादा वो रिस्क को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो ऐसा फनल है ना, ये तो कभी खत्म नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट विल टेक यू टू व्हाट, टू एन इमरजेंसी सिचुएशन। करेक्ट। तो अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? क्या एकदम से बाकी सब ट्रीटमेंट को हम छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते एकदम। तो अभी क्या करना है? स्लोली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर। तो किसी चीज को ऐसे सीधा सीधा काटने से काम नहीं चलता, बिकॉज दैट विल इटसेल्फ बिकम एन इमरजेंसी। तो अभी आपको क्या करना है? हमारे पास में ना लोग आए, ऐसे एक लेडी आई, उसने कहा मेरे पर कोई भी दवाई काम नहीं करती। तो हमने कहा कि एक काम कीजिए, 3 महीने का कुंभक करो, उसके बाद बताना हमको। नॉट 3 मंथ, 1 महीने के बाद आती है, कहती मेरी दवाई काम करने लग गई मेरे। अब वो दवाई काम नहीं कर रही, दवाई हमने बॉडी में किसी चीज का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, मेटाबॉलिज्म बढ़ा दिया। अब वो तो सोच रहे दवाई काम कर रही है। मैंने उनको फिर कहा कि दवाई काम कर रही है वाला बात छोड़ो, अब ये दवाई छूट जाएगी आगे चल के, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे जाना है, स्टार्ट स्लोली, बहुत धीरे धीरे शुरू कीजिए इसको एम्पावर करना, और 1 साल का टारगेट लो, 1 साल का टारगेट। हाँ, और मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि फिर मैंने ऐसे जब मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो तो फिर व्हाट शुड बी माय प्रायोरिटी? मॉर्बिड ओबेसिटी शुड बी माय प्रायोरिटी? नहीं, देयर इट कैन नॉट बी वन प्रायोरिटी। यू हैव टू डील विथ योर बॉडी होलिस्टिकली। इसके हर एक एस्पेक्ट को एड्रेस करना है। अष्टांग चिकित्सा विल बी वेरी वेरी मैजिकल फॉर यू, ठीक है ना। तो ये इट एड्रेसेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस बॉडी, नॉट जस्ट वन। हम किसी एक चीज को पकड़ के ठीक करें, उसके बाद दूसरे को ठीक करें, तो कभी भी ठीक नहीं होगा। तो इसको अंदर से ठीक करना है। स्टार्टिंग कहां से हुआ, कौन सा वीकनेस है जिसकी वजह से शुरुआत हुआ, जिसकी वजह से पैरासिटामोल को आपका बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाया, या फिर कोई और प्रॉब्लम, वो हमें डायग्नोसिस से पता चलेगा। तो हम बाहर से किसी को एक को पकड़ने की जगह अंदर से सेंटर को ही पकड़ लेते हैं, सब कुछ पकड़ में आ जाएगा। कुंभक इज लाइक होल्डिंग द सेंटर ऑफ द होल प्रॉब्लम, बराबर, और उसको ठीक करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो जिस फैक्टर की वजह से आपके शरीर में कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी कामकाज होता है, वो कुंभक है। तो कुंभक से स्टार्ट कर, एवरी फंक्शनैलिटी, एवरी ऑर्गन विल गेट रिजुवेनेशन, एंड देन यू विल सी कि जब एक साथ सारी चीजें आएंगी ना, देन इट विल क्रिएट अ हेल्थ। बराबर। तो वो ऐसा कीजिए।
क्योंकि ये प्रोग्राम जो आपका मस्कुलोस्केलेटल एड्रेस कर रहा है, फिर आपने हाँ, बोला इसको बच्चों के लिए अलग है, मस्कुलोस्केलेटल फिर के डायबिटीज के लिए अलग हमने है, ऐसा कुछ, तो दैट्स व्हाई आई वाज लिटिल कि क्या मगर मेरा क्या। हाँ, मगर आपके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट प्रोग्राम है। अच्छा, ओके। ठीक है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट प्रोग्राम है, क्योंकि जब हम न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल करें, ऑब्वियसली हम इस तरफ में एड्रेस जरूर कर रहे हैं इसको, बट न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम कैन नॉट बी एड्रेस्ड by improving something called as the metabolic factor, the strength factors of this body. तो ये बिल्कुल जरूर सही प्रोग्राम होगा आपके लिए। एक क्वेश्चन तो एक कोई पूछ रहा है, एंड चलो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। May I ask one question, please? इंदिरा वर्मा, इंदिरा वर्मा, इंदिरा वर्मा क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए फटाफट, अनम्यूट करके बोलो, एंड आई हैव टू मूव ऑन टू अनदर प्रोग्राम। मैं बोल रही हूँ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स तो मुझे मिल गए अभी प्रीवियस कॉल से भी। मेरा यही प्रॉब्लम है कि मेरा जो साइड का जो बटक है, लेफ्ट राइट साइड का एंड पूरा लेग, इसमें मल्टीपल इश्यूज है, लाइक सियाटिका भी है, लंबर इश्यूज भी है, एंड पहले भी था, लेकिन अभी ऐसी कंडीशन आ गई ना डिलीवरी के बाद से, मैंने झुका उका तो इतना ज्यादा हो गया कि अभी बैठ के खाना तक भी मैं मुश्किल से खाती हूँ, एक चाय और बिस्किट भी खाती हूँ या फिर कुछ भी, एक पानी भी पीती हूँ तो वो भी मुश्किल हो जा रही है। तो मेरा है कि मैं ये ज्वाइन करती हूँ, कैसे भी करके मैं 90 मिनट्स मैनेज करती हूँ जैसे कि, लेकिन उसके बाद मुझे कैसे क्या करना है, मतलब जो पेन है उसमें रिकवर करने के लिए। मैं बताता हूँ। पहले जो डिलीवरी के बाद में हमेशा वात दोष बढ़ता है बॉडी के अंदर, उसको रोकने के लिए पहले क्या किया जाता था, बहुत सारी चीजें, हेवी स्टफ दिया जाता था, जो भी प्रसूता है उसको बहुत हेवी चीजें दी जाती थी, गाय के गोबर का उपला जलाया जाता था, खाट के नीचे उसके ऊपर लिटाया जाता था, जिससे कि वात दोष कम हो। आजकल हम शरीर के इन सब चीजों को समझते नहीं, जिसकी वजह से होता क्या है, ज्यादातर लेडीज को पोस्टमार्टम डिफिकल्टीज एंड डिजीज बढ़ रहा है। डिलीवरी के बाद बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमें जिस तरीके से शरीर को समझना चाहिए वो समझ है नहीं अभी हमारे पास, हमने एक्चुअली उसको हटा दिया। अभी क्या करना, जरा ध्यान से सुनिए, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। एक लेग में प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब पहली बात तो स्पाइन पे इंपैक्ट आया है, लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन, और जिसकी वजह से सियाटिका का इशू, और एक पांव में अलाइनमेंट बिगड़ गया। अलाइनमेंट जब तक आप ठीक नहीं, 3 अलाइनमेंट आपको कभी भी पोस्टमार्टम पीरियड में 3 अलाइनमेंट करना ही चाहिए, 100% करना चाहिए। नाभि का अलाइनमेंट, कौड़ी का अलाइनमेंट और नलों का अलाइनमेंट, जांघों का अलाइनमेंट, ये अगर आप नहीं करेंगे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पे लोड आता है, वीक होते हैं रीढ़ के, और एक लेडी का तो पूरा शरीर ही वीक हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर को इस्तेमाल किया गया है किसी जीव को क्रिएट करने के लिए, तो पूरा इस्तेमाल होता है, तो वो पूरा इम्बैलेंसेस हो जाते हैं उसके अंदर। स्वामी जी, मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरा नी भी, मतलब मैं पहले बहुत जिम भी किया मैंने, तो 2 साल में मैं ना, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर क्या हुआ, मैं गिर गई थी बटक पे, कॉक्सिक पे गिरी थी मैं, बतक जो आप बोलते हो ना मूलाधार, उसी पे मैं गिरी थी। तो कॉक्सिडेनिया कुछ डॉक्टर ने बताया, तो मैं ऐसी लड़की हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है रेस्ट करने से शायद वो जाम हो जाएगी, तो वी हैव टू एक्टिव ऑलवेज। तो मैंने कभी रेस्ट किया नहीं, तो मैं एक्टिव ही होती गई। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो मैंने योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैंने ना, जैसे कि हमें कोमोड में नहीं जाना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो मैंने हर वो चीज ट्राई की, एंड झुका भी, और मैंने सूर्य नमस्कार भी किया, एंड इन प्रॉपर वे ऑल्सो। बट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो मेरा सियाटिका और लंबर इशू स्टार्ट हो गया था, बिकॉज आई नो अबाउट माई बॉडी, आई एम वेरी मच अवेयर अबाउट माई बॉडी। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ, डिलीवरी खत्म हुई, उसके 15 डेज तक जैसे कि वो पता नहीं फूडिंग स्टाइल या क्या पता नहीं, तो मेरा जो बटक में पेन था ना, जो एक पाँव सरकाने से ऊपर लाते हैं ना हम लोग नीचे, नी को मोड़ के, जो मतलब फ्रंट साइड में, तो वो हल्का सा जो एक अजीब तरह का बहुत चिल्लाने वाला दर्द होता था, वो चला गया था 15 डेज में। तो आई सडनली रियलाइज, ओ इट्स गॉन। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद मैं एक्टिव हो गई, फिर आई स्टार्टेड डूइंग लाइक 3 महीने, मतलब मैं एक्टिव ही थी, तो मेरा स्टिचेस वगैरह आराम से सूख गया। अभी भी मेरा नी ऑपरेशन हुआ है 2 महीना पहले, तो एक्चुअली आई एम लाइक एक्शन ओरिएंटेड, मैं हमेशा चलती उलती हूँ, तो मेरा नी काफी मुड़ गया है।
बट द थिंग इज नाउ आफ्टर दैट टाइम मतलब मेरा इतना दर्द होने लग गया ना कि मेरा सब चीजें छूट गया। इवन मैं पवन मुक्तासन, मैं भुजंगा आसन जो ऊपर से ऊपर करती हूँ वो भी अब ऐसा टाइम आ गया ना कि मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ। तो और मैं एक पेन भी उठा लेती हूँ ना झुक के या ऐसे करके ले लेती हूँ साइड से, तो इतना ज्यादा कंप्रेशन फील होता है कि मेरे को इतना तकलीफ हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, हाँ। मैं आपको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन सीधा बता दूं, ठीक है ना। आपने इतनी सारी बातें बताई। मैं स्पोर्ट्स में था, मैं हठ योगी रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पाँव की सारी हड्डियां टूटी हुई हैं, हाथ की सारी हड्डियां टूटी हुई हैं। हड्डियों पे गिरने से, हड्डियों के टूटने से दर्द नहीं होता। वो कुछ समय तक दर्द होगा, फिर ठीक हो जाएगा इफ योर बॉडी इज अलाइन्ड। ध्यान से सुनिए, बार बार इस बात को कह रहा हूँ, इस बात को नहीं समझ रहे कि मैंने ज्यादातर योगासन, सूर्य नमस्कार करने वाले लोग देखे हैं जिनकी नाभि बिगड़ जाती है, हिल जाती है, और वो सफर करते हैं। तो कभी भी ये समझिए कि अगर कोई इंसान, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो एक एक घंटे, डेढ़ घंटे कपालभाति करके उन्होंने अपना मेंटल बैलेंस बिगाड़ दिया। उनको मैंने सिर्फ देखा, केवल ये छोड़ दीजिए आप ठीक हो जाएंगे। तो जीवन के बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो कि मिस्ड आउट हैं, लेकिन प्रमोट खूब जोर शोर से किया जा रहा है। हठ योगा बिना बैलेंस के नहीं होता है, और बिना बैलेंस के आप जितना हठ योगा करेंगे उतना शरीर बिगड़ता जाएगा। तो पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि जोर, अभी ना वेस्टर्न कल्चर हमारे सिर पे ना चढ़ के बोलता है, जोर लगाना, जोर लगाना। हमने योगा को भी जोर लगाना मतलब, इट शुड बी फ्लोइंग। वो तो आपको अपने आप ही उस स्टेट में आ जाना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। वो तभी होगा जब आपका बॉडी में बैलेंस रहेगा। एक टाइम ऐसा भी था जहां पे, क्योंकि मैं हठ योगी रहा हूं, तो मैं हर तरीके के आसन करता था और बहुत तरीके से करता था, और मेरी नाभि बिगड़ गई थी, इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, कोई ये पकड़ नहीं पाया कि इसकी नाभि खराब है तो ये प्रॉब्लम ठीक कर ले। फिर मुझे धीरे धीरे इवॉल्व करता करता उस स्टेट पे पहुंचा हूं जहां पे मुझे पता चला कि मेरी नाभि खराब है, मेरी कौड़ी खराब है, नले बिगड़े हुए हैं। देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग मेथोडोलॉजीज, ताकि लोगों को प्रॉब्लम नहीं, वो एक्शन करेंगे ना। एक्शन जब भी इम्बैलेंस होता, प्रॉब्लम होते, और आप बिना इम्बैलेंस के एक्शन नहीं कर पाएंगे अनलेस अनटिल यू रीच अ सर्टेन स्टेट। तो पहली बात ये कि कभी भी हठ योगा, बॉडी से फिजिकल एक्टिविटी कभी भी करना चाहिए तो उसके पहले और बाद में दोनों टाइम पे अलाइनमेंट करना चाहिए। इसीलिए हमारे प्रोग्राम में अलाइनमेंट एक मेजर फैक्टर है। इसमें भी हम बॉडी मूवमेंट्स ब्रेथ के साथ में, ब्रेथ होल्ड के साथ में करवाते हैं, जो कि और भी पावरफुल होता है, लेकिन उसमें अलाइनमेंट बहुत मेजर चीज है। तो आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है, पहली बात। आपकी नाभि बिगड़ी है, आपको देख के पता चल रहा है आपकी नाभि बिगड़ी हुई है। तो स्वामी जी, मुझे मेरी बॉडी के बारे में बहुत अच्छे से अवेयर है, मतलब मेरे को बहुत अच्छा से अवेयरनेस है कि मुझे कहाँ क्या एग्जैक्ट, आई नो दिस थिंग ऑल्सो। उसको ठीक करने की जरूरत है। हाँ, तो मैं क्या पूछ रही थी, एक बात और भूल गई। अच्छा ठीक है, हाँ बताइए, मैं मीनवाइल याद आता है तो। आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है और नाभि बिगड़ा हुआ है आपका, आपकी बॉडी में आपका राइट और लेफ्ट का अलाइनमेंट भी बिगड़ा। हाउ, अच्छा, हाँ वो मुझे पता है स्वामी जी। मैं एक्चुअली हाँ, मेरा भी प्रॉब्लम ऐसा हो गया ना कि मैं, जैसे कि अभी नी का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, इम्बैलेंस हो गया था प्रेगनेंसी के टाइम, तो कुछ अर्ली आर्थराइटिस बता दिया। अभी जितना सीढ़ी चढ़ती हूँ उतना दर्द होता है, और रेस्ट करती हूँ तो दर्द उतना मतलब मैनेजेबल रहता है। अच्छा, तो मुझे बताइए, ये समझ आपको ठीक होना है कि नहीं होना? होना है। एक क्वेश्चन सर स्वामी जी, कि जैसे कि अभी मैं ये ज्वाइन कर लिया मैंने कोर्स, तो ठीक है, मैं ज्वाइन करने के लिए तो मैं 90 मिनट्स कैसे भी करके बैठ के ट्रीटमेंट कर लूंगी, बट पूरा होल डे मैं कैसे मतलब मैं कैसे मैनेज करूं, हाउ टू स्केड्यूल माय रूटीन्स, लाइक मतलब चलना कितना है, कितना बैठना है, क्योंकि मुझे पता है मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकती हूँ। देखो, ये कोई गाइडलाइन या फिर स्टैंडर्ड ना अपनाएं। आप ये कह रहे हैं
कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना भोजन करना है? हाँ, तो दूसरा बताएगा या आपका शरीर बताएगा? आपको भोजन कैसे तो मुझे पता पता चलेगा चल कि मुझे जाएगा। तकलीफ हो रही है? आपको हाँ, कैसे पता चलेगा कि आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? किसी को शायद बताना पड़ेगा आपको, या आपको पता चल जाएगा? आपको पता चलेगा ना कि आप खुश हैं कि नहीं है, आप कंफर्टेबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आपको इसमें तकलीफ, जिसमें तकलीफ, जब भूख लगे तो भोजन कर, अगर एक पांव पे थक जाए तो दूसरे पांव पे शिफ्ट कर जाए। ये कॉमन सेंस सब में है ना। इन सब चीज के हाँ, लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी अपने प्रोग्राम में हम काफी चीजों को लेके गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, वो भी गाइड करते हैं, मगर सबसे अच्छा गाइड कौन है? आपका शरीर। आप सबसे अच्छा गाइड। हाँ। अच्छा स्वामी जी, मैं आपको एक चीज दिखाऊं। मेरा जो हाँ। राइट लेग है ना, जैसे कि मैं अभी कैसे दिखाऊं, मतलब राइट लेग में ना थोड़ा मतलब ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके, थोड़ा प्रेस करके, फिर मैं थोड़ा चलने का कोशिश करती हूँ ना ऐसे, तो मतलब वो ढीला ढीला लगता है, पाँव ऐसे लगता है वो जब भी अलाइनमेंट है, वो अलाइनमेंट